بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے آج ایک تھوڑی سی آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا کہ ہماری بہت ہی ایک میری پیاری آپ کہہ لیں اسٹوڈنٹ ہیں، میری بہن ہیں ریحانہ صاحبہ. ان کا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے. تو آپ سب بہنوں سے جو اس وقت کلاس میں موجود ہیں اور جو یہ ریکارڈنگ سنیں گی، آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے. ان کے لیے ان کا نام لے کر خاص طور پہ آپ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائیں اور اس آزمائش سے نکل آئیں، دوبارہ سے ہمارے ساتھ جڑ جائیں. ماشاءاللہ اتنی اچھی اسٹوڈنٹ ہیں یہ. بہت کم لوگوں میں نے اتنا شوق دیکھا. قرآن سے جو ان کی محبت ہے، شوق، بہت شوق سے تیاری کرتی ہیں، سبق سنانے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن ان کی جو بہت بڑی خوبی جو میں پچھلے جب سے میرے خیال میں کچھ 1.5-2 سال ہو گیا ہوگا، کم از کم سال ڈیڑھ، تو جب سے میں انہیں جانتی ہوں. بہت کم اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو بات بھی کرتے ہیں تو اتنی عاجزی ہوتی ہے ان کے لہجے میں. حالانکہ میں بالکل کوئی ٹیچر نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو ایسا سمجھتی ہوں، میں بیسیکلی خود اسٹوڈنٹ ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی میں تعریف نہیں کر سکتی کہ انہوں نے مجھے اس کرسی پہ بٹھایا. اور اگر میں نظر بھی آ رہا ہے کسی کو کہ میں ٹیچر ہوں اور وہ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں آپ، تو یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کرتے ہیں. لیکن انسانوں کا بھی دل راضی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں. بہت اوبیڈینٹ، بہت ہمبل، اتنی عاجزی اور اتنی محبت، اور جسے کہتے ہیں نا اتنی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ بہت کم اسٹوڈنٹ ایسی میں نے دیکھی ہے. تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے جتنے احترام سے پیش آتی ہیں. ان کے لیے میری جب سے مجھے پتا چلا ہے، میں دل سے دعا ہے، خود ہی مجھے یاد آ جاتی ہے، مجھے یاد کرنا نہیں پڑتا انہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ دیں، بالکل صحت یاب ہو کر واپس ہم سے ملے. آمین. اچھا جی، کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آج آیت نمبر جو ہے کون سی آیت ہے جس میں اجمعین کا ذکر آج آئے گا؟ آیت نمبر 87. اجمعین تاکید کا اسلوب ہے. آج میں اس کا تھوڑا سا بتاؤں گی انشاءاللہ. اور ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 90. اس میں آتا ہے ثم ازدادو. تو یہ جو ازدادو ہے جو بالکل پہچانا نہیں جا رہا، تو اس کو ڈسکس کروں گی. ابھی شروع میں کر لیتی ہوں، ٹائم ہے، بعد میں نے کہا نا سمپل آیات ہیں. ہم الحمدللہ بہت ساری اس میں سورہ بقرہ میں ایسی ملتی جلتی کر چکے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی کر چکے ہیں، تو بہت جلدی لے کر چلیں گے اس کو انشاءاللہ. آج یہ کچھ چیزیں ہیں، میں نے کہا اس بہانے باب افتعال کی کچھ ایکسیپشنز میں آپ لوگوں کو ریوائز کروا دوں گی. اور اس سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گی، یہ جو میں ایسی چیزیں ریوائز کرواتی ہوں نا، کچھ تو میں بیسک کی چیزیں ساتھ ساتھ ریوائز کرواتی ہوں، کچھ ایڈوانس کے ٹاپک میں بہت ڈیٹیل سے، میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہوتا کہ میں الگ سے کلاس دے کے کروا سکوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حبیبہ جی بھیج دی ہیں کہ وہ انشاءاللہ جو میرے بہت عرصے کے ٹاپکس پھنسے ہوئے تھے کہ میں کروانا چاہ رہی تھی آپ بہنوں کو، اور اگر شروع بھی کروایا تو میں نے اس طرح سے نہیں کروایا جیسے کروانے کا حق ہوتا ہے اور جس طرح ان کی اسپیشلٹی ہے. تو اب یہ کروائیں گی انشاءاللہ، ان کو ضرور سنیے گا. باقی جو میں کرواتی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر کلاس میں کوئی نہ کوئی بیسک یا ایڈوانس کا ٹاپک ریوائز کرواؤں. اب جیسے باب افتعال کی میں ایکسیپشن آج تھوڑا بہت کرواؤں گی، تو اس کا میں یہ ضرور کہوں گی اگر آپ کو مشکل لگ رہے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی، آپ چھوڑ دیں. جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ اس کو سمجھ لیں، جن کو نہیں آ رہی وہ بالکل چھوڑ دیں. بس آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ میں کیا رہی ہوں، پھر آہستہ آہستہ سنتے سنتے دیکھتے دیکھتے اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، چیزیں ویسے آنے لگ جاتی. پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اگر میں کلاس لوں گی انشاءاللہ، ایک دفعہ میں ذکر کروں گی، پھر حبیبہ جی ابھی تو یہ ٹاپکس کمپلیٹ کروائیں گی، کور کروائیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد جب وہ خود پڑھایا کریں گی ماشاءاللہ، وہ حدیث، قصص، یا آپ کہہ لیں کہ فقہ، بیسیکلی تو ان کے یہی اسپیشلٹی ہے. وہ جب بھی کچھ بھی آپ کو کروائیں گی تو اس میں بھی بہت کچھ چیزیں ایسی وہ آپ کو ریوائز کروائیں گی یا کور ہو جائیں گی، یا آپ ان کا سن کے خود سے بھی ریوائز کریں. تو یوں سنتے، کبھی اس سے سنا، کبھی اس سے سنا، کبھی کسی کو یوٹیوب پہ سنا، کبھی کسی کی بک پڑھی، تو یہ چیزیں ان ٹچ رہیں گی. بار بار سننے سے، پڑھنے سے یہ خود ہی آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے. تو میں نے سوچا کہ جب میں اس دادو آپ کو کروانے جا ہی رہی ہوں تو اس کے ساتھ میں باب افتعال کی ایکسیپشن تھوڑی سی پھر ریوائز کروا دیتی ہوں. آ جائے سمجھ ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. آپ کو کم از کم اتنا ہی پتا چل جائے گا کہ یہ چیز پہچانی نہیں جا رہی ہاں کہ ہاں یہ کوئی ایکسیپشن لگ رہی ہے. ٹھیک ہے.
तो इतनी बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर आपको ये समझ आ जाएगी कि ये कुछ एक्सेप्शन लग रही है। ऐसा तो नहीं कि बाब इख्तियाल या बाब वो जो तफाउल वगैरह की एक्सेप्शन है उनमें से वो भी डिक्शनरी देखेंगी, कभी तो उस तक लफ्ज तक पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह, फिर वहां पे आपको पता चल जाएगा ये मादा बाप, अंदाजे से पहुंच जाएंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें और समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो सुन लिया करें, देख लिया करें और फौरन घबराया ना करें, कोशिश जरूर किया करें। फिर भी मैं साथ साथ बता देती हूँ कुछ चीजों का, मैं आपसे कहती हूँ कि ये मस्ट है, फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। कुछ मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, बस सुन लें। अच्छा जी, आज ये जो अजमाइन आ रहा है ये ताकीद के लिए आ रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा जी। ताकीद बेसिकली होती है, जैसे मैंने कोई बात की और मुझे लगा कि सुनने वाले को कोई इबहाम उसके ज़हन में ना रह गया हो या कुछ शक में ना पड़ गया हो, कोई कमी ना रह गई हो मेरी बात कहने में सुनने में, तो उसको मैं ताकीद करूंगी। ठीक है, अब कैसे करूंगी इसके मुख्तलिफ अंदाज है। बाज दफा मैं किसी लफ्ज पे जोर दूंगी, काइंडली अपने माइक म्यूट रखिए जी। बाज दफा मैं किसी लफ्ज पे जोर दूंगी, मैं एक लफ्ज को दोहरा दूंगी। जैसे अगर मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि बच्चों मुझे पानी पिलाओ, तो मुझे लगा हो कि पता नहीं उन्होंने सुना है या नहीं सुना, या तो मैं दोबारा कहूंगी कि मुझे पानी पिलाओ, पानी। ठीक है, फिर मैं उस चीज पे जोर दूंगी। एक तरीका है। तो किसी भी चीज, कुछ इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। बाज दफा किसी लफ्ज पे किसी चीज को दोहरा देते हैं तो उससे ताकीद पैदा हो जाती है। बाज दफा कुछ अल्फाज इसके लिए बने हुए हैं, वो अल्फाज आ जाए तो वो खुद आपको नजर आएगा कि ये ताकीद के लिए है। और ताकीद का मतलब यही है कि हमने कोई बात कही है तो सुनने वाले को हो सकता है कि उसने या तो सही सुनी नहीं, तो दोबारा भी हम सुना सकते हैं, या उसने सही समझी नहीं उस तरह से, तो उसको दोबारा से जब हम जिक्र करेंगे तो उसको ज्यादा उसकी बेहतर समझ आएगी। तो अच्छा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक चीज होती है ताबे। ताबे होते हैं वो चार चीजें हैं, बाज जगह पांच भी हैं लेकिन बेसिकली चार है, जिनका अपना कोई एराब नहीं होता। ये अपने से पहले इन कुछ होते हैं अल्फाज, उनको फॉलो करते हैं। जैसे सिफत ताबे है, इसका अपना कोई एराब नहीं है, ये पीछे मौसूफ को फॉलो करेगी, जो मौसूफ के एराब है वही इसके होंगे। तो मौसूफ को हम कहेंगे मतबू, इसको कहेंगे ताबे सिफत को। इसी तरह ये टोटल चार है। और दूसरा आप सुनने की, ये ताकीद है। ताकीद है तो ये इसे मौकिद भी कहते हैं जेर के साथ। और पीछे ये जिसको फॉलो करता है वो मौकद, काफ के ऊपर जबर के साथ। तो बस इतना ही बहुत है। तो ताकीद आती है किसी की कुछ भी बात को पक्का करने के लिए। अब यहाँ देख लेते हैं, लुगत में किसी अमर को पुख्ता करना ताकीद कहलाता है। तौकीद या ताकीद एक ही बात है। ऐसा ताबे है जो मतबू के मुतल्लिक हो सकता है कि सही सुना ना हो, या हो सकता है कि सही समझा ना हो। जैसे अगर ये मिसाल लिखी होती है कि काबलतुल अमीरा नफ्सहू, मैं अमीर से मिला, पहले बस इतनी बात है, काबलतुल अमीरा, मैं अमीर से मिला, वक्त का अमीर जो भी है। अब हो सकता है आपके जहन में आया हो कि नहीं, खुद नहीं मिला होगा इनकी, हो सकता है बात कहीं फोन पे हुई हो, या कोई इसका बीच में कोई और आदमी होगा जिससे इनकी बात करवाई, खुद नहीं मिला होगा। तो आगे मैं कहूंगी काबलतुल अमीरा नफ्साहू, नहीं मैं खुद ही मिली हूँ, यानी कि ये आपको आपके जहन में जो इबाम पैदा हुआ उसे क्लियर करने के लिए। तो उसके बहुत सारी बातें हैं, आप घर डेली बेसिस पे भी ये चीजें इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम गौर नहीं करते। दो इसके अच्छा एग्जाम भी बहुत तरह से हैं। मैं लिसानुल कुरान को चूंकि ज्यादा फॉलो करती हूँ, मुझे सबसे सिंपल इसका उसलूब लगता है। बस ये दो तरीके हैं इसके, ये याद रखें। एक लफ्जी ताकीद होती है, एक मानवी होती है। लफ्जी में आप समझ लें कि कुछ लफ्ज हैं जो कि जिनको दोबारा ले आते हैं तो वो पक्का कर देते हैं किसी बात को इबाम के ऊपर। मानवी में लफ्ज नहीं है। मानवी में इस तरह से नहीं है कि कोई चीज पीछे कही है वही दोबारा आ रही है। मानवी में कुछ लफ्ज बनाए जा चुके हैं, पांच छह अल्फाज हैं जो अरबी में इस्तेमाल होते हैं, वो आएंगे और वो बेसिकली उसका जो मौकद है, यानी कि जिसकी ताकीद के लिए, जिस बात की, जिस चीज की ताकीद के लिए वो आ रहे हैं, वो उसके माने पर दलालत करते हैं, उसके माना पर ताकीद के लिए आते हैं। ठीक है, लफ्जी तो खुद ही दोबारा आ जाते हैं, मानवी जो है वो उसके माना पर दलालत करेंगे खुद। आपको ये नहीं है कि वही लफ्ज दोबारा आएंगे। मैं जब इनकी मिसालें बताऊंगी आपको ज्यादा समझ आएगा। लफ्जी में क्या है कि लफ्जी ताकीद में जो भी लफ्ज आ रहा है ताकीद के लिए वो दोबारा आ जाएगा। इसम आ सकता है, पहले वाले इसम की ताकीद के लिए फेल दोबारा आ सकता है, हर्फ आ सकता है, पूरा जुमला दोबारा आ सकता है।
اب ان کے آگے سے بہت تفصیل ہے, میں جلدی سے بتا کے گزر جاتی ہوں, بس جتنا ہے تھوڑا سا آپ آئیڈیا لے لیں. اچھا اسم جیسے جا زیدن, زیدن, اب زید دوبارہ انہوں نے زور ڈالا کہ زید آیا, زید, زید آیا, زید, اس طرح سے. تو اب اسم آیا پیچھے اسم کی اس کے لیے تاکید کے لیے. اب نیچے دیکھیں جالسا, جالسا زیدن, اس میں فعل, فعل کی تاکید کے لیے آ گیا. نام, نام ہاذا کتابی, اس میں حرف, حرف کی تاکید کے لیے آ گیا. اور کلا سیعلمون, اس میں آپ ثم کلا سیعلمون, یہ جملہ اس جملے کی تاکید کے لیے آ گیا. تو اب اس میں کیا, یہ آپ کو کوئی بھی چیز جب دہرائی جاتی ہے نا, لفظ ہے یا جملہ ہے, تو وہ آپ سمجھ لیں تاکید کے لیے آئے ہمیشہ. اسم اسم کے لیے, فعل فعل کی تاکید کے لیے, حرف حرف کے لیے, اور جملہ جملے کی تاکید کے لیے. پھر اس میں کیا ہے کہ اسم کے آگے سے بھی تفصیل ہے کہ ظاہر اسم تو اسی طرح سے ریپیٹ ہو جائے گا, لیکن جو ضمیر ہے ان کے اپنے کچھ رولز ہیں. اگر تو ضمیر متصل ہے, اندر فرض کریں کسی کا فاعل ہے کوئی, اس کی تاکید کبھی متصل ضمیر سے نہیں آئے گی, منفصل الگ ضمیر سے آئے گی, ٹھیک ہے, ڈیٹیچ ضمیر سے. ہاں اگر ضمیر پہلے سے منفصل ہے, الگ سے ہے, تو اس کو پھر آگے اس کی تاکید کے لیے وہ منفصل ہی دوبارہ آ جائے گی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ اس طرح یاد کرنے کی ضرورت نہیں, جب کبھی یہ آیا کریں گی میں انشاءاللہ آپ کو پھر سے دہرا دوں گی سارا, آپ کو یاد آ جائے گا. فعل, فعل کے لیے حرف, حرف کے بھی کچھ رولز ہیں, سارے حرف تاکید کے لیے نہیں آتے, کچھ اس طرح سے آتے ہیں, یہ ڈیٹیل ہمارا آج ٹاپک نہیں ہے. پھر جملہ, جملے میں یہ جو بیچ میں حرف عطف آیا ہوا ہے نا, یہ ٹپیکل حرف عطف نہیں ہوتے, یاد رکھیے گا. یہ بعض دفعہ یہ زائد حروف کے طور پر ہوتے ہیں, جیسے واو بیچ میں آ گیا, سما آ گیا, بس یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں. تو جو جب آئے گا, آج جو آیا میں آج اس کی تھوڑی سی زیادہ بات کروں گی, باقیوں کو چھوڑ دیں. پھر مانوی تاکید, اس میں کچھ عربی گرامر والوں نے, بلکہ عرب میں کچھ الفاظ ہیں جو جب آتے ہیں تو وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ انہیں اس لیے توکید مانوی کہا جاتا ہے کہ یہ معنی کے اعتبار سے موقد کے مطابق ہوتے ہیں, جس کی تاکید کے لیے آ رہے ہیں, یہ معنی کے لحاظ سے ہوتے ہیں, الفاظ سیم ریپیٹ نہیں ہوتے. یہ آپ یاد کر لیں تو اچھی بات ہے. نفس, عین, کل, اجمع, اور قلع اور قلتا. پھر آگے سے ان کی بہت ساری ڈیٹیل ہے, وہ تھوڑی سی بتا دیتی ہوں, تھوڑی سن لیں, شاید آپ کو فائدہ ہو جائے. کبھی جب بھی آئیں گے تو آپ نے سمجھنا, جہاں نفس آیا, عین آیا, فوراً سمجھ جائے تاکید کے لیے آیا, مانوی تاکید ہے. یہ اس کے موقع پہ جس کی تاکید کے لیے آئے ہیں اس کے معنی کے مطابق ہوں گے. اچھا اب اس میں نفس آیا, عین, یہ جو دو ہیں یہ, اچھا ایک اور بات, یہ جو اب مانوی تاکید والے ہیں نا, یہ ہمیشہ ضمیر کے ساتھ آتے ہیں. ان کے ساتھ ایک ضمیر ہوگی, وہ ضمیر پیچھے موقد کی طرف لوٹ رہی ہوگی. جیسے اگر میں نے آپ سے کہا نا قابلت الامیرہ نفسہ, میں امیر سے ملا نفسہ ہوں, ٹھیک ہے, اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ میں نفسہ ہوں, یعنی کہ میں اسی ہی سے ملا, ٹھیک ہے. تو جو اس کے اعراب ہے وہ اس کے اعراب ہو جائیں گے. پھر اس کے علاوہ آپ اس میں ضمیر آ گئی ہو کی, وہ اس کی طرف جا رہی ہے, امیر کی طرف, تو یعنی کہ جس کی تاکید کے لیے آئیں گے نا, ان کے ساتھ ایک ضمیر لگی ہوگی, وہ واحد کی بھی ہو سکتی ہے, وہ مثنیٰ کی بھی ہو سکتی ہے, وہ جمع کی بھی ہو سکتی ہے, وہ موقد کے مطابق ہوگی. نفسہ, نفسہا, نفسہم, اس طرح سے. ویسے نفسہم کم ہوگا, جب یہ مثنیٰ یہ جمع کے ساتھ آتے ہیں نا, نفس اور عین, تو یہ اس طرح سے ہوگا انفس عیون, افعل کے وزن پر آئیں گے. اسے سن لیں, کچھ بھی نہ سمجھ آئے کوئی بات نہیں, شاید کوئی ایک بات سمجھ آ جائے, پھر جب کبھی یہ استعمال ہوں گے نا پھر میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. بس خاص بات یہ ہے کہ مانوی تاکید کے الفاظ ہیں, یہ ڈائریکٹ نہیں آئیں گے, ان کے ساتھ ایک ضمیر لگی ہوگی, وہ پیچھے اس کی تاکید ان کی شو کر رہی ہوگی کہ یہ اسی کی طرف لوٹ رہی ہوگی جس کی تاکید کے لیے یہ آئے ہیں. پھر اس میں قلع اور قلتا ہمیشہ مثنیٰ کے لیے آتے ہیں, یہ ظاہر اسما کے ان کے ساتھ بھی لگ کر آ سکتا ہے, ضمیر بھی ان کی بھی رولز ہیں, چھوڑ دیں. اب آگے آئے, رہ گئے کلن اور جمیعن. یہ جمیعن یہاں نہیں لکھا, ویسے میں جمیعن کی بات کرنے جا رہی ہوں. کلن اور جمیعن عام طور پہ یہ جمع کے لیے آتے ہیں, لیکن مفرد کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. ان کے ساتھ پھر ایک ضمیر لگی ہوگی, وہ اس کے بالکل عدد اور جنس پہ اس کے مطابق ہوگی جس کی تاکید کے لیے یہ آئے ہیں. اب اس میں ایک فرق یاد رکھ لیں, یہاں پہ لکھ لیں پوائنٹ, کہ اگر جمیعن اکیلا آ رہا ہے نا, بغیر ضمیر کے آ رہا ہے, تو وہ حال بن کر آ رہا ہوگا. اور اگر جمیعن کے ساتھ کوئی ضمیر لگی ہے جو پیچھے کسی اس کی طرف موقع کی طرف لوٹ رہی ہے, تو پھر یہ تاکید کے لیے آتا ہے. یہ صرف جمیعن کا لکھ لے پوائنٹ بس. تو کلن
जमीउन, ये भी जमीर इनके साथ लगेगी, ये ताकीद के तौर पर आएंगे और इनकी जमीर बिल्कुल अदद और जिन्स में उसके मुताबिक होगी जिसकी ताकीद के तौर पर ये आए हैं। अब अगर कुल्लुन और जमीउन के आगे से मजीद ताकीद करनी हो तो फिर कुछ अल्फाज ग्रामर वालों ने और बनाए हुए हैं, जिसमें अजमाऊ, जमा, अजमाऊना, ये अल्फाज, ठीक है। ये मजीद ताकीद के लिए कुल्लू हु भी लिखा होगा और आगे उसकी ताकीद के लिए अजमाऊ आ जाएगा। कुल्लू हा लिखा होगा उसके लिए जमा आ जाएगा। कुल्लू हुम लिखा होगा उसकी ताकीद के लिए अजमाउन आ जाएगा। और बाज दफा जरूरी नहीं कि कुल्लू वगैरह लिखे हों, ये डायरेक्ट भी आ सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बोले हैं ना, इसमें आप अजमाऊ या अजमाऊना बस याद कर लें। अजमाऊ अजमाऊना, इनकी खास बात ये है कि ये जमीर इनके साथ नहीं लगे, ये बगैर जमीर के आएंगे और ये मजीद ताकीद के लिए। पहले कुल्लू ये जमीउन आ गए ताकीद के लिए, ये फर्दर उनकी ताकीद के लिए आते हैं और बाज़ औक़ात वो आपको नजर आएंगे कुल्लू जमीउन, बाज़ दफा नहीं नजर आएंगे। आप समझ जाइएगा कि मजीद दर मजीद ताकीद, ठीक है। बस आज के लिए इतना, कोई इसमें पॉइंट रह गया कोई बात नहीं, जितना समझ आ गया बस उतना ही। अब आगे चलते हैं। अच्छा, आज का हमारा पॉइंट ये था, हाँ ठीक है, वो है इज़दादू। और बिल्कुल नहीं पहचाना जा रहा इज़दादू, तो ये चीजें प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह समझ आएंगी। अभी एकदम देखकर हमें भी बाज औकात ना थोड़ा सोचना पड़ता है कि ये क्या है, ऐसी बात नहीं है कि फट देख गई फौरन समझ आ जाए। तो ये था जा या दाल, बाब इफ्तियाल में पुट करें, इफ्ताला यफ्ताइलु, इज़्दायदा यज़्दायिदु। तो बाब इफ्तियाल की मैंने 3 एक्सेप्शंस अभी पिछले दिनों रिवाइज करवाई थी, मैं आज फिर करवा देती हूँ। उसमें से ये एक अगर आज एक भी आ जाएगी आपको बहुत है, बाकी सिर्फ सुन लें। अब यकीन करें, आप सिर्फ सुन भी लें ना गौर से, ना भी समझ आए, कभी ना कभी वो चीज क्लिक करती है कि कुछ था, कुछ उसकी एक्सेप्शन में ऐसा था इस बात की। चाहे आपको भूल जाए कि वो फा कलिमा पर था, वो आइन पर आएगा तो ये होगा, या वो फर्दर चेंज किया है, वो उसके लिए कोई बात नहीं, हम सब भूल जाते हैं। इंसान का एक मतलब ही यही होता है, वो भूलने वाला होता है। तो आप फौरन नोट्स खोलें, बुक खोलें, कोई वीडियो देख लें, आपको सारा याद आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो सुन लें, बाब इख्तियार की एक एक्सेप्शन ये है कि इसके फा कलीमा में देखें, असल में बाब इख्तियार में तब्दीली जो हो रही है, अच्छा मैं आपको एंड फेज को मैं समअप करती हूँ। फा कलीमा में अगर ये 3 हरूफ, पहले मैंने शायद कुछ और तरीके से बताया, पता नहीं मुझे आज शक पड़ा था, मैंने कहीं आपको कुछ गलत ना बता दिया हो, तो आज मैं दोबारा से इसको मैं करवाना चाह रही थी। तीसरे वाला मुझे लगता है कि कहीं मैंने जो तीसरा इसका कायदा वो भी शायद मैंने फा कलीमा को बताया है, वो जबकि आइन कलीमा पर आने वाले हरूफ का है, ठीक है। अगर मैंने ऐसा बताया, बाज़ औक़ात ज़हन में कुछ होता है, ज़बान से कुछ जारी हो रहा होता है, तो अल्लाह रहम करे। आज सुन लीजिए, आज मैं प्रॉपर लिख कर लाई हूँ कि आज मैं बोलने में गलती ना करूँ। बाब इफ्तियाल में फा कलिमा में अगर ये वाले 3 हरूफ आ जाएं, तो आपने क्या करना है कि इसमें इन 3 हरूफ में जो बाब इफ्तियाल की ता बदलना ता ने है, इस कायदे में आना फा कलिमा पर है, बदलना ता ने है, ता हमेशा दाल में बदलेगी। अब देखिए, दाल आ गया फा कलिमा पे तो वो तो खैर ता दाल में बदल जाएगी, लेकिन अगर जाल आ गया फा कलिमा पर तब भी ते इसकी दाल में बदलेगी। अगर इसके फा कलिमा पर जे आ गई, चलिए मैं उर्दू में बोलती हूँ, चीजें शायद ज्यादा याद रहे, जे आ गई है तब भी उसकी ते दाल में बदलेगी। अब देख, इज दायदा यज दायिदु, ये हो गया। अब यहाँ पर अजवफ का कायदा लगेगा। अजवफ में क्या होता है, उसका पहला कायदा, वाओ अजवफ वावी है या अजवफ याई है जो बीच में आते हैं, वो अगर मुतहर्रिक है, मुतहर्रिक मैंने ये नहीं कहा जेर है या जबर है या पेश है, ठीक है। जैसे कुछ कायदे में पेश के साथ कायदा होता है, कुछ में जेर के साथ होता है, मैंने कहा बस मुतहर्रिक कोई हरकत हो, लेकिन इससे पहले जबर हो तो ये दोनों वाओ या पूरे अलिफ में बदल जाते हैं। जैसे इज दा या दा में या मुतहर्रिक, उससे पहले दाल पर जबर, तो ये पूरे अलिफ में बदल गया, तो ये बन गया इज़दादा। अब आगे है यज़दायिदु, इसमें या फिर मुतहर्रिक है, ठीक है, जेर के साथ है तो जाहिर है मुतहर्रिक है, उससे पहले जबर है, ये फिर अलिफ में बदल गई, ये बन गया यज़दादु। तो ये असल में हमारा आज इज़दादा है, इज़दादा, इज़दादा, इज़दादू, तीसरे वाला जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, जो कि हमारी आज की आयत में आप देखेंगे। बस ये कायदा अगर आप समझ लें आज के लिए बहुत है। हल्का सा मुझे बता लेने दें, मैंने कहा आज मैंने थोड़ा लिखने का मुझे मौका मिला,
मैंने कहा कि ऐसे मुझे हमेशा वहम ही रहता है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती कि मैंने कुछ गलत ना बता दिया हो। ज़हन में मैंने कहा ना बाज़ में कुछ और होता है, ज़ुबान से कुछ और निकल जाता है, बाज़ में मैं पढ़ते हुए भी कुछ और बता सकती हूँ। दूसरा कायदा, ये भी 4 ऐसे अल्फाज हैं, हुरूफ हैं जो मोटे हैं, जो बाब इफ्तियाल के ये भी फा वाली जगह पर आएंगे तो इनमें ते तोए में बदल जाएंगे। बस ये सिंपल है, जब कभी आएंगे मैं आपको बता दूँ। ये जो मैंने ऊपर हाईलाइट किया है ना, जैसे इस ताबारा यस ताबीरू को मैंने तोय में बदला तो इस तोबारा यस ताबीरू, बस इतना ही बहुत है। ये एक और भी ऑप्शन है कि फर्दर भी तोय जो बनी है, जो ते तोय में बदली है, वो तोय सेम लेटर में भी बदल सकती है। जैसे इससे पहले स्वाद है ना, ये तोय स्वाद में बदल जाएगी। इससे पहले दौद आ रहा था, ये तोय जो पहले ते से तोय बनी, तोय से दौद। इसी तरह इसमें पहले तोय है तो ये ते तोय में बदली, वो तो फिर से तो बन सकता है। यानी कि ये 4 हरूफ का कुछ कायदा ऐसा है कि बाब इफ्ताल की पहले ते को तोय में बदलेंगे, फिर वो तोय बदल सकती है दोबारा से इन चारों में, जरूरी नहीं है। आप बस पहले वाला जो मैंने हाईलाइट किया ना, इस तौबारा यस ताबिरू, बस यहाँ तक। ये 4 मोटे हरूफ है। जिन बहनों ने तजवीद के कोर्सेज किए हैं उनको अंदाजा होगा कि इसमें ये आप इस पे अगर ये ना बदलें आप पढ़ ही नहीं सकते। आप इस तरह से इस ताबरा नहीं पढ़ सकते, फिर स्वाद मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। स्वाद को हैवी करेंगे तो ता हैवी हो जाएगी, तो वो फिर अंडरस्टूड है कि ये बदल जाता है, ते तोय में बदल जाती है, फिर सही पढ़ा। इसमें भी बाब इफ्तियाल में फा पर ये 4 हरूफ अगर आए तो बदल कौन रही है, ते बदल रही है। तो अब हम आखिरी कायदा भी जल्दी से देख लेते हैं, कुछ समझ आए ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। इसमें एक चेंज है, इसमें भी अब इसमें आइन कलिमा पे कुछ हरूफ आने, बस ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैंने कहीं गलती से फा ना बता दिया, जैसे मुझे वहम सा हो रहा था। अब इतना टाइम नहीं था, मैं अपनी वो वीडियो भी रिकॉर्डिंग चेक करती, तो आप अगर मैंने ऐसा बताया तो ठीक कर लीजिएगा, और अगर मैंने ठीक बताया तो बस फिर पक्का कर लीजिएगा। बाबी इफ्तियाल में ये कुछ हरूफ है, ये अब अगर आइन कलिमा पर आएंगे तो बदलना फिर ताने, और ताने इसी वाले हरफ में बदल जाना है। जैसे कि खा सौद मीम, इफ्ताला यफ्ताइल में पुट करें तो इख्तासमा यख्तासिमु। अब ये इसमें क्या है, बाब इफ्तियाल के इसमें आइन कलिमा पर, आइन कलिमा क्या है, सौद, ठीक है। अब स्वाद आ गया आइन कलीमा पर, तो ये स्वाद उन 10-11 हरूफ में से एक है। अब ये आ गया तो अब बाब इफ्तियाल की जो ते है वो स्वाद में ही बदल गई। अब 2 स्वाद हो गए, इख्सौसमा यख्सौसिमु। अब यहाँ पर मुदाफ का कायदा, एक ही कायदा मुदाफ का, एक हर्फ 2 दफा आ गया है, एक ही कायदा है, उसको मर्ज करें, इदगाम करें। कैसे करना है, अगर तो वो पहला हर्फ खाली होना मस्ट है, खाली है मोस्ट वेलकम, नहीं तो उसको जबरदस्ती गिराएं, यानी कि इस तरह से गिराएं, पहले उसके नेबर को देने की कोशिश करें। नेबर खाली है तो उसको दे दें, नहीं तो जबरदस्ती गिरा के पहले हरफ को खाली करें, फिर इदगाम होगा और दूसरे हरफ के मुताबिक आप हरकत लिखेंगे। एक सौसमा यख सासिमु, इसमें अब ते बदल गई स्वाद में, क्योंकि वो आइन कालिमा पर अब आया है। पहले दोनों जो मैंने कायदे बताए हैं फा पर आ रहे हैं, बदलना ता नहीं है, हमेशा हमेशा ता ने बदलना। पहले दोनों कायदे फा पर आ रहे हैं, ये आइन कलीमा पर आ रहा है। इसमें भी ता बदल गई, वही जो आइन कलीमा पर है, तो दो सेम लेटर 2 टाइम्स आ गया। तो अब इसमें आपने पहले स्वाद की हरकत खा को दे दी क्योंकि वो खाली था, तो इखस सामा, इखस सामा यखस सीमू बन गया। यहाँ पे इदगाम कर दे तो इखसमा यखसिमू, और इसको फर्दर भी आगे खसमा कर सकते हैं, हमजातुल वस्ल गिराया जा सकता है। ये चीजें मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, दिल चाहे तो देख लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है पता नहीं कब मुझे 6 महीने साल कभी दोबारा मौका कब मिलता है ये रिवाइज करवाने का। जो चीज जब मौका अल्लाह ताला दिल में, यकीन करेंगे अल्लाह ताला की तरफ से होता है। मैं जब आयात की तैयारी शुरू करती हूँ मेरे दिल में कुछ भी नहीं होता, ना मुझे कुछ आ रहा होता, बस मैं जब शुरू करती हूँ मेरे दिल में सब कुछ उतरता जाता है अल्लाह की तरफ से। पहले मैं खुद तैयारी करती हूँ, फिर मैंने आप लोगों को क्या बताना है वो अल्लाह ताला मेरे दिल में डाल रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब आपने भी महसूस किया होगा, हमारे खुद से कोई कमाल नहीं है। तो ये चीजें हर क्लास में मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स मेरे दिल में एक होता है कि आज ये स्टूडेंट्स को करवाने चाहिए। तो जो भी हैं आप एक दफा इनको सुन लें, मैं ग्रुप पे शेयर करूंगी, देख लें, और नहीं तो बस छोड़ दें, ठीक है। आपको कम से कम पता होनी चाहिए, मैं इतनी दफा करवाऊंगी इंशाल्लाह, जब भी कभी आएंगे हम बिल्कुल रिवाइज करेंगे। चलें जी, अब हम आते हैं आज की आयत की तरफ। बहुत मैंने कहा ना ये इससे मिलती जुलती आयत हम काफी दफा कर चुके हैं, तो आज हमने बहुत जल्दी करना है इंशाल्लाह। मोटी मोटी मैं कुछ बातें बताऊंगी, आज डिटेल में नहीं जाएंगे, और बस आयत करें और तर्जमा करते हैं। कौन थी मेरे साथ आज, तस्मिया होंगी कि मफरूका होंगी?
जी मैम मैं तस्मिया। तस्मिया, रोल नंबर 6 आ जाए जी। तस्मिया, आयत को पढ़े, आपसे 2-3 आयत करवाते हैं, आयत छोटी हैं कुछ बीच में, तो आयत को पढ़ें और इसकी करें। आप थोड़ा सा जल्दी से बताएं, ज्यादा नहीं, बस मैं खुद पूछती हूँ आपसे। फमन तवल्ला बअद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। फा इस्तेनाफिया, मन सरतिया मुब्तदा, और तवल्ला में वाव आपको लाम या। कैसे पता चला ये शर्तिया? शाबाश, कैसे पता चला? ये करने वाली बात। आगे मैम जवाब शर्त आ रहा है ना, फउलाइका। शाबाश शाबाश। अच्छा देखिए, एक तो ये पता चलता है कि इसके जवाब पे में वफा जजाइया या फा राबिता वो आएगा। दूसरा, अगर इसके बाद वो होता ना मुदारे, वो मजूम हुआ होता। अब चूंकि ये मुदारे नहीं है, ये माजी है, तो इसे महल्लन मजूम कहेंगे, इस वजह से पहचान में नहीं आ रहा। मुदारे होता जी तो हमने फौरन पहचाना। अब हमारे पास सिर्फ एक ही है कि जी फा जजाइया या फा राबिता है, इस वजह से मन शर्ती है। इसकी तरकीब कैसे करते होते हैं मन शर्तिया? जल्दी से बताएं। वा ये तवल्ला, ये बता इसकी आगे तरकीब बताओ। ऐसे करते हैं, मन को जी मुब्तदा मानते होते हैं और शर्त और जवाब शर्त दोनों को मिलाकर खबर। एक और भी तरीका है कि जी उसको छोड़ दें, ये सिंपल है। ठीक हो गया, ये इसकी तरकीब हो जाएगी। फिर मन जी। मुब्तदा अपने जो हाँ शर्त और जवाब शर्त से मिलकर जो खबर बनी है, तो उससे मिलकर ये जुमला इस्मिया बन जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। ठीक हो गया जी। जी चले ओवरऑल बात कर रहे हैं। वैसे तो याद रखें, जो शर्त वाला जुमला होता है ना, शर्त वाला, वो हमेशा फेल होता है, और जवाब शर्त दोनों हो सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वल्ला, इसका मादा और बाब बता दें। वाव लाम या मादा है, और बाब तफाउल से है मैम। शाबा, फाइल बता दें। तवल्ला का फाइल जी मैम बता रहे हैं। वो अंदर ही है मैम हुआ फाइल। जी जी, हुआ फाइल, शाबाश। और बाद अजालिका को क्या बनाएंगी? बाद ज़ालिका ज़र्फ मुदाफ इलैह होकर मफूल मफूल। मफूल फी भी कह सकती हैं और मुतल्लिक भी जी कर सकती मफूल हैं। ठीक से। हो गया। तो तवल्ला फेल या अपने फिर फाइल मुतल्लिक। हुआ जी जमीर और मुतल्लिक से मिलकर या मफूल फी से मिलकर जुमला फेलिया होकर शर्त। सर। जी तो तर्जुमा करें। फिर जो उसके बाद फिर जाए। शाबाश, फिर जाए, बहुत अच्छा तर्जुमा किया तस्मिया ने। अक्सर लोग यूं कह देते हैं कि फिर जो उसके बाद फिर गया। देखिए याद रखें, जब शर्त के हरूफ या अस्मा आए, हमें भी गलती लग जाती है बाज दफा, तो उसका तर्जुमा आपने माजी में नहीं फिर करना, सिवाय लव के। वो एक और जी थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है। बाकी सबका उस पे करते हैं मुस्तकबिल में या हाल में, खासतौर पे मुस्तकबिल में। फिर जो उसके बाद, फमन तवल्ला बाद जालिका, फिर जो उसके बाद फिर जाए, या फिर जाएगा, या मुंह मोड़ लेगा। तवल्ला होता है ये जो बाबे तफाउल से आता है ना, इसके दो जी बहुत मुख्तलिफ माना होते हैं। एक तो होता है मुंह फेरना या रूगर्दानी करना, मुंह फेरना कह लो, मुंह मोड़ना। और एट द सेम टाइम अगर आप एक चीज से मुंह मोड़ रहे हैं, दूसरी चीज की तरफ मुंह कर रहे हैं, तो दोस्ती कर रहे हैं ना, एक तरफ से हम दो मुंह कर रहे हैं, एक तरफ से फेर रहे हैं। तो इसके बहुत ऑपोजिट माना है। तो वो देखना होता है। अक्सर जब इसके बाद अन का सिला आता है, तो इसका मतलब होता है मुंह मोड़ना या मुंह फेरना। लेकिन बाज औकात जैसे यहाँ पर अन नहीं आया हुआ, तो आपको वैसे सबको पता होना चाहिए, तर्जुमे से अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर दोस्ती करना तो नहीं आ सकता, तो ये मुंह फेरना। फिर जिसने, फिर जो इसके बाद, फिर जो इसके जाए। बाद मुंह फेरेगा या मुंह मोड़ेगा या फिर जाएगा या रूगर्दानी करेगा, सब इसके तर्जुमे ठीक है। जवाब शर्त बता दें। फा जजाया उलाई का मुब्तदा हम जमीर फसल, और फासिकुन ये इस्मुल फाइल खबर बन जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, और ये माशाल्लाह। सब। आप इसका ये जो जमीर फसल आई है, इसका तर्जुमा करके दिखाएं जवाब शर्त का, क्या तो फर्क पड़ा यही है? लोग नाफरमान है। ये ही लोग, तो शाबाश, यही लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, नाफरमान। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब ये जो फा की वजह से ये जो इसका जवाब है शर्त, ये वाला जो हिस्सा है, ये जुमला इसमें है, उलाई का मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर। अच्छा ये देखिए, खबर मारफा आई है तब भी हसर पैदा हो रहा है, और मारफा जी ना, मारफा आ रही है और साथ जमीर फसल भी आ गई है। ठीक है, जमीर फसल ना भी आती, खाली मारफा भी होती तब भी हसर था, फिर भी लेकिन अब जमीर अच्छा है। फसल आ रही है तब भी हसर है।
تو ये उलाई का मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर ये जुमला इस्मिया होकर जवाब शर्त, शर्त और जवाब शर्त मिलकर मन मुब्तदा के लिए खबर, मन मुब्तदा खबर। अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। अब पूरा तर्जुमा कर दे। फिर जो उसके बाद फिर जाए तो यही लोग नाफरमान है। माशाल्लाह, शाबाश। थोड़ा सा फिस्क को देख लेते हैं। डिक्शनरी के मुताबिक इसका मतलब होता है, ये बाब नासरा से जो आता है, फासकल यफसुकु फुसूकन फिस्कन, खजूर के गुद्दे का जो झिल्ली से बाहर आना। और एक जगह मैं और देख रही थी, जैसे ये फूल की वो नहीं होती कली में से जो फूल बनती है, तो ये अपनी हदें तोड़ के भी बाहर आते हैं ना सारे। पहले छोटे उस एक लिमिट में होते हैं, किसी झिल्ली में मेम्ब्रेन में होते हैं, तो उसके बाद जब बाहर आते हैं इसे फासका कहते हैं। बेसिकली ये होता है अतात के दायरे से बाहर निकलना, इतात के दायरे से नाफरमानी करना। कुरान मजीद में छोटी और बड़ी हर तरह की नाफरमानी के लिए इस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है। इस तरह इसके 3 दर्जे हैं। एक दर्जा वो होता है फासिक का, जो नाफरमानी को बुरा तो समझता है लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग कभी वो उससे नाफरमानी हो जाती। दूसरा दर्जा वो है जो कि इसको उसका बस यूज टू हो जाता है, आदी हो जाता है और फिक्र भी नहीं करता कि मैं गलत कर रहा हूँ। तीसरा दर्जा उस वो है, फासिक वो है जो बल्कि इस नाफरमानी को उल्टा अच्छा समझ के करना शुरू हो जाता है, और बल्कि आगे इसमें उसको फैलाने में भी पार्टिसिपेट करता है। तो ये उलमाए किराम के मुताबिक ये जो पहले 2 दर्जे हैं उसमें वो वाला फासिक तो मोमिन रहता है, लेकिन जो ये आखिरी दर्जे वाला है जो बल्कि इसको गलत भी नहीं समझता, अच्छा समझ के इसको आगे करता और फैलाता है, तो वो इस दर्जे में काफिर हो जाता है। खैर ये ठीक है, ये छोटा सा था, ये डिक्शनरी में से ही, ये लुत्फुर रहमान साहब की डिक्शनरी में से मैंने आपको बताया। चले जी, इन्होंने कर दिए इसमें तो मैं फिर कर देती हूँ। फिर जिसने इसके बाद मुंह फेरा, सॉरी मुंह फेरे, ठीक है, मैं देखा मैं भी उस तरह कर जाती हूँ ना, माजी आता है तो जहन में वही आता है, लेकिन शर्त का ऐसे नहीं करना। फिर जो इसके बाद मुंह फेरेगा, या जो इसके बाद मुंह फेरे, रूगर्दानी करे या फिर जाए, तो यही लोग फासिक हैं, नाफरमान हैं। फासिक जैसे सूरह बकरा में भी आया, और भी इसके मुख्तलिफ हैं, उसमें इस तरह से इसको मेंशन किया गया, वो लोग हैं जो अल्लाह ताला से किए गए वादों को तोड़ते हैं, अल्लाह की हदों को तोड़ते हैं। तो अल्लाह ताला से वादा बेसिकली वही वादा जो अलस्त है, जिसमें अल्लाह ताला को रब भी मानना है और अल्लाह ताला की भी माननी है, अल्लाह ताला के अहकामात को मानना है। तो उनसे जो नहीं, उनकी नाफरमानी उनके करता है, नहीं मानता, तो वो फिर इस दर्जे में, इस कैटेगरी में ये लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता है। जी अगली आयत पढ़ें और इसका करें। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबगून वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। अलीफ हमजा इस्तिफाम, फ़ग़ैर में फ़ाइस्तिनाफिया, गैर मुदाफ, दीनिल्लाहि ये मुदाफ इलैह, और फिर अल्लाह मुदाफ, ये ठीक मुदाफ हो और गया, फिर गैरा दीन इल्लाही पेचीदा पेचीदा मुरक्कब। मुरकब इजाफी हो गया, जी ठीक है। हाँ। इसको क्या बनाएंगे, गैरा दीन इल्लाही, गैर दीनिल्लाहि ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी मफूल भी मुकद्दम। मफूल बिही मुकद्दम। शाबा, जी याद रखें ये आपने फा इस्तनाफिया कही है, वैसे ये फा आतिफा भी हो सकती है, और इस फा का जी रूल होता है कि अगर इसके साथ हमजा इस्तिफहाम आए, वो इसके बाद नहीं आएगा, वो हमेशा पहले आएगा, हल इसके बाद आ सकता है। तो इस वजह से इन्होंने लिखा पहले, लेकिन असल में फा का ही जगह उसकी पहले बनती है। फिर गैरा का याद रखें, ये हमेशा कुल्लू बाद उनकी तरह मुदाफ बनकर आता है, और इसकी एक खास बात है, ये अगर लिख लें गैरा, अगर आ, नकरा नहीं, अगर यानी कि मारफा की तरफ भी मुदाफ हो रहा हो ना, आप गैरा फिर भी मारफा नहीं बनता, गैरा हमेशा नकरा ही रहता है। और इस हमजा का अगर किसी को शौक है तो ऐसा हमजा इस्तिफहाम जो कि जिसकी बात जो ऐसी पूछी जा रही है जिसका जवाब नामुमकिन है, नहीं हो सकता और नहीं में है, इसे इस्तिफहाम इनकारी भी कहते हैं। तो आफा गैर दीन, तो क्या, ठीक है, मैं फा का पहले, तो क्या अल्लाह के दीन को छोड़कर, या अल्लाह के दीन, इसके बहुत सारे माना है, सिवा, इलावा, छोड़कर, और भी, इसको इंशाल्लाह फिर कभी डिटेल में देखेंगे। जब गूना, इसका बताएं जरा, जो इसका जिसका आप बागैन मफहूम या, बना। जी दो, बागैन या मादा है, दौद बाबे नू बा, दो, बाब इसका दौद है, बग, दौराबा, ठीक हो गया, बगा बगा यबगी। यबगी। जी और इसके 2 माना होते हैं, तलाश करना भी और चाहना भी। तो चाहत में हद से बढ़ना। जी यबगूना फेल, अपने, इसका फाइल कौन है? यबगूना का मैम फाइल अंदर ही है, हम। ठीक है, हम कह लें या वाव जमीर कह लें, जी यबगूना फेल अपने फाइल और अपने मफूल बिही मुतल्लिक के साथ, सॉरी मफूल बिही के अपने मुकद्दम के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया हो
تو اس کا जी। ترجمہ کریں. तो क्या अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन चाहते हो? शाबाश. आफा गैरा दीन इल्लाही यबगूना, क्या तुम अल्लाह के दीन के सिवा या के अलावा या अल्लाह के दीन को छोड़कर कोई और दीन चाहते हो या कोई और दीन तलाश करते हो. दोनों इसके माने यहाँ पे पूरे उतर सकते हैं. आगे वाव को क्या बनाएंगे? हालिया लहू ठीक है, मुताल्लिक मुकद्दम और मुतल्लिक असलम मुकद्दम. नाम में मादा बाबे इकबाल से और मन मौसूला फिस समावाती इसका सिला। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट. मौसूल सिला मिलके क्या बने? मातूफ बनेंगे मैम। अच्छा, अस्समावात मातूफ अलैह, अल जी अर्द मातूफ. मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर मजरूर हो गया ना फी के लिए, जी और आपने इसको जी सिला भी मैम। बना दिया. अब मैं पूछ रही हूँ कि अब मन मौसूला अपने इस सिला से मिलकर क्या बना? अब मातूफ नहीं होंगे ना, ये मन कैसे मातूफ हो रहा है? मुताल्लिक नहीं, मन मुतल्लिक नहीं होगा, मन इसम है. मुक्तदा बने नहीं। ये जो मौसूल सिला होते हैं ना, ये बहुत कुछ बनते हैं. फाइल, मफूल, मुब्तदा, खबर, फाइल बनेंगे मजरूर, मैम, फाइल बनेंगे। फाइल बनेंगे. माजी असलम शाबाश का फाइल बनेगा। शाबाश, एक्सीलेंट, माशाल्लाह. मन फिस समावाति वल अर्दी, वो हर वो चीज, कोई भी, कुछ भी, कोई भी आसमान और जमीन में है ना, वो असलमा हुआ ना, वो उसके जी लिए, या अल्लाह ताला के लिए उसने फरमाबरदारी की या फरमाबरदारी कबूल की है. बहुत सारे इसके हो सकते थे, तो वो फाइल है. तावन व करहन को क्या बनाएंगे? जी मैम। तो ये हाँ मातूफ ये हाल बनेंगे मैम। जी शाबाश. देखिए, आप मातूफ और हाल में, पहले आप बताएं कि हाल तो बन रहे हैं, हाल उससे पहले क्या बनेंगे? मातूफ और मातूफ अलैह बनेंगे। जी तावन शाबाश मातूफ शाबाश, बनेगा और करहन मातूफ अलैह। माशाल्लाह. और फिर मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर अब क्या मिलकर बना? हाल बनेंगे। हाल। हाल बन गया. फर्ज करिए जैसे हम इसको बनाते हैं, इसका वो जुलहाल मन को कह देते हैं, तो फिर जो मन है ना, वो जुलहाल, ये हाल, तो जुलहाल और हाल मिलकर एक ही चीज बनेंगे. तो जो अब मन बन रहा है वही ये बनेंगे. तो जैसे मन फाइल बन रहा है अपने सिला से मिलकर, तो ये भी उसके साथ ही जाके अटैच हो जाए. ये तरकीब है. तो अब ठीक है, तर्जुमा कर दें? पूरा मैम क्या? नहीं, बस यहाँ से शुरू करें, वाला हु से. हालांकि हालांकि उसी के फरमाबरदार है जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है। तावन व करहन, ये बेसिकली खुशी से मजदर और है. नाखुशी से। ताइना, कारिहीना इस माना में इस्तेमाल हुए हैं. और जी बिल्कुल, अब इस तरह से है कि असलमा फेल अपने फाइल मन फिस समावाती वल अर्दी तौअन व करहन, ये फाइल है सारा, और लहू मुतलिक मुकद्दम, इससे मिलकर जुमला फेलिया होकर ये सारा जुमला हाल बन गया. ठीक हो गया. हालांकि ये अल्लाह ताला का हाल ये है कि जो कुछ आसमानों और जमीन में, जो कोई आसमानों और जमीन में, अगर आप मन को मन जो होता है वो उसका होता है ना, आकिल का, आप ये भी कह सकते हैं जो कोई आसमानों और जमीन में है, उसने तौवन और करहन, खुशी और नाखुशी, बाद में इस वाव को औ के माना में लिया है, खुशी या नाखुशी, फिर उस ही की मुतलिक मुकद्दम हो गया, हसर पैदा हो गया, उस उसी की ही तरफ की को लौटाए जाएंगे। फर्मा बरदारी, आप कह लें कि उसकी अतात की, या आप उसकी फर्मा बरदारी इख्तियार की, कि यूं कह सकते हैं. बाद ने इस तरह भी लिखा है कि उसी का फर्मा बरदार है. लेकिन देखें, ये चूंकि फेल आया तो बेसिक, और वो भी माजी है, तो कोशिश हम ये करेंगे कि हम भी इसका वैसे कर लेते हैं. तो उसी की फर्माबरदारी की या फर्माबरदारी कबूल की. मैं एक बार फिर करती हूँ, सब बहने गौर से सुने. आफा गैरा दीन इल्लाही यबगूना, क्या वो अल्लाह के दीन के अलावा या के सिवा या इसको छोड़ के कुछ और तलाश करते हैं? हालांकि अल्लाह का हाल, उस ही के लिए, आप इसको शुरू में कह लें या शुरू में फाइल पहले ले आ जाए, जो भी आसमानों और जमीन में है उसने उस ही की, ये देखिए अल्लाह ताला ही की फरमाबरदारी या ताबेदारी कबूल की, ताबेदारी इख्तियार की या फरमाबरदारी की, खुशी से या ना खुशी से, या खुशी और ना खुशी, चाहते हुए ना चाहते हुए. बाकी बहुत सारी तफासीर है इसके बारे में. तौन उनके बारे में जो जैसे कुफार हैं जो कि, सॉरी, मोमिन है,
جو خوشی سے کرتے ہیں. کائنات کی اصل چیز، اصل میں کائنات کی ہر چیز وہ خوشی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے. اور کرہن میں بعض تفاسیر میں جیسے کافروں کا ذکر ہے، کفار کا، اور بیسیکلی دیکھا جائے تو انسان اس میں آتا ہے. انسان کے علاوہ ہر چیز خوشی سے اطاعت کرتی ہے، صرف ایک انسان ہے جس میں ہر انسان خوشی سے اطاعت نہیں کرتا. فردر ڈیٹیل میں جائیں تو توأن میں مومنین آ جائیں گے، کرہن میں کافرین آ جائیں گے، اور بھی جو بھی ڈیٹیل ہے. تو پھر ایک بات سنیں، تو کیا وہ اللہ کے دین کے سوا، اللہ کے دین کے علاوہ، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور کو تلاش کرتے ہیں، یا کسی اور کو چاہتے ہیں، یا کسی اور دین کو، کوئی اور دین، اب اس طرح سے بھی با محاورہ کر سکتی ہیں، کسی اور دین کو چاہتے ہیں یا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، حالانکہ جو کوئی مناقل کے لیے اگر کرے، جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی یا ناخوشی، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، اختیاری یا نا اختیاری، جو بھی اس کا آپ کر لیں، اس نے اللہ ہی کی، اس ہی کی فرما برداری کی یا اختیار کی. ٹھیک ہے جی. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. جی میم، واضف الہ متعلق مقدم. مقدم، اور یرجعون میں را جیم عین مادہ باب پاس سے اور لوٹنا، اور ہم فائل نائب الفائل، شاباش، یہ یہ مجہول. مجہول ہے، جی مجہول ہے. اس کا نائب الفاعل ہوگا واو جی، ضمیر یا اور ہم اسی ضمیر. کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. شاباش. باقی اس کا یاد رکھیں، یہ جو یرجعون ہے، جی جیسے را جیم آئین، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ان افعال میں سے ہے جن کا جو کہ لازم و متعدی دونوں ہوتے ہیں. یہ لوٹنا بھی ہے، یہ لوٹانا بھی ہے. یہ جی ویسے انٹرسٹ کے لیے بتا رہی ہیں. شاباش. اب تھوڑی دیر کے لیے مائک میوٹ کرتے ہیں، میں ایک سیکنڈ اس کا آخری دفعہ ترجمہ کرتی ہوں، پھر آگے چلتے ہیں. اور الہی انہوں نے متعلق مقدم بنا دیا، یرجعون فعل فاعل. اب یہاں پہ نائب الفاعل آئے گا، تو فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر آپ اس کو چاہے تو پیچھے یہ اس کو عطف کر دیں. اچھا جی. اور کیا، تو کیا، فا کو اگر آپ عاطفہ بنا رہے تھے تو اور کے ساتھ کر لیں، نہیں تو سو بس. تو اگر فا کو استنافیہ کر رہے ہیں، دونوں اس کے بارے میں رائے. تو کیا اللہ کے دین کے علاوہ، اللہ کے دین کے سوا، اللہ کے دین کو چھوڑ کے وہ کوئی اور دین یا کچھ اور تلاش کرتے ہیں، کچھ اور چاہتے ہیں، حالانکہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اس نے توأن و کرہن، اس نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، یا چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے، آپ واؤ کو اور یا دونوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس ہی کی فرما برداری کی یا اس ہی کی فرما برداری اختیار کی، اور اس ہی کی طرف حسر پیدا ہو رہا ہے، متعلق مقدم ہو گیا، اس کو پہلے نہیں آنا چاہیے تھا، اور اس ہی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. چلیں جی، اگلی آیت بھی آپ کر دیں. اور یہ الحمدللہ یہ اب سورہ بقرہ میں کر چکی ہے، بس اس کو پڑھے اور ترجمہ کر دیں. بہت سمپل ہے. کل کو چھوڑ دیں، کل فعل امر ہے، انتا اس کا فاعل ہو گیا، آگے اس کا مقولہ بتائیں کیا کہنا ہے. تسمیہ. جی میم، سوری میں مائک بند کر کے ہی بولے جا رہی تھی میم. کوئی بات نہیں آمنا جی، اس کا مقولہ بتائیں. ہاں آمنا جی. آمنا مقولہ ہے میم، حمزہ میم نون اس کا مادہ ہے باب چھوڑ فعل، دے، اور یہ سمپل ہے بس. آمنا الہ باللہ، با کے متعلق. صلہ سے جی آ رہا ہے تو پکے والا، یقین والا، جی، صحیح والا آپ ایمان ہے یہاں پہ. کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل بالکل علینا، اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا. ٹھیک ہے، جو ہماری طرف وما اتارا گیا انزل یا نازل کیا گیا، یہ مجہول ہے. شاباش. علی ابراہیم، اور وہ اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو آپ کچھ ترجمہ کر دیں، ابراہیم. میں جلدی سے ترکیب جی کر میم. دوں. جی کریں. اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور جو کچھ یعقوب علیہ یہ بھی السلام چلنے اور دیں. ہاں ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، ٹھیک ہے. اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا. شاباش. ٹھیک ہے. جی میم. اب لا نفرق بین احد منہم. جی، لا نفرق بین ترکیب بتاؤں میم؟ یہ لا ترکیب میں نفی، جلدی سے بتا دیتی ہوں، میں بتا دوں گی، اب صرف ترجمہ کر. ہم ان میں کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے.
ان میں سے کسی ایک کے درمیان. शाबा. ठीक है, अहादिन की सिफत है मिनहुम. اور आगे ये जो है ना ला नुफरिकु बैन अहादिन मिनहुम, ये जुमला फेलिया फेल फाइल और इसका बैन अहादिन इसका मुतल्लिक हो जाएगा या मफूल भी, और मिनहुम अहादिन की वना सिफत है तो उसी के साथ जुड़ जाएगा. इस जुमला फेलिया को क्या बनाना चाहेंगे? ये मैम ये पीछे जो है ना हम ईमान लाए, हमारा हाल, ये हम जुमला इसको हाल बना सकते हैं नाहनु के लिए कि हम, ये सारा जुमला फेलिया हाल बन जाएगा. अगले को भी आप हाल बना सकते हैं, चाहे इस वाले पे अतफ कर दें और चाहे, चले जी, वा नाहनु लहु मुस्लिमून, और हम उसी के फरमाबरदार हैं. हम उस ही के. शाबाश. इसमें नाहनु लहु मुस्लिमून, मुस्लिमून किस वजन पर है? मुस्लिमून ये थोड़ा बहुत पहचान में आता है. मुस्लिमून अच्छा चले मैं बताती हूँ, आप थोड़ी देर के लिए माइक म्यूट कीजिए, मैं इसका जल्दी से करवा देती हूँ. देखिए जी, कुल ये फेल अमर है, अंता इसका फाइल है, आगे मकूलुल कौल शुरू हो रहा है. आमन्ना बिल्लाही, आमन्ना फेल, इसके अलिफ के ऊपर वो खड़ा अलिफ, इसका पता चल रहा है हमजा मीम नून ये बाबे फाल से आया है. तो इसका जो आमन्ना, हम ईमान लाए, ये नहनु इसका फाइल है, बिल्लाही इसके मुतल्लिक करते, फेल फाइल मुतल्लिक जुमला फेलिया हो गया. अब जो आगे आ रहा है वमा उनजिला, असल में ये आमन्ना बिल्लाही जुमला फेलिया ये मकूलुल कौल है असल, बस. अब आगे वाओ आतिफा हम कह रहे हैं तो फिर मा मौसूला उनजिला अलैना, उनजिला मजहूल फेल मजहूल और इसका नाइब फाइल इसके अंदर हुआ और अलैना इसके मुतल्लिक, तो फेल फाइल मुतल्लिक जुमला फेलिया होकर मा मौसूला के लिए सिला बना, मौसूल सिला मिलकर अब इसको पीछे अल्लाह लफ्ज जलाला पर अतफ कर, क्योंकि ये इसम है. मौसूल सिला, मौसूल जो होता है ये इसम होता है ना, तो अपने सिला के साथ मिलकर अब उसने किसी इसम पर ही अतफ होना है, तो अल्लाह लफ्ज जलाला पे. ऐसा ना हो कि आप इसको ये आपको फेल जैसा लग रहा और पीछे आमन्ना वगैरह पे नहीं. आगे फिर चले वाओ आतिफा फिर मा मौसूला, उसी तरह उनजिला अला इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाक व याकूबा व अस्बात, और इस सारे को भी उनजिला फेल इसके अंदर इसका नाइबुल फाइल, और ये सारे इसके मुतल्लिक करके ना अला इब्राहिमा इसके मुतल्लिक कर दें, इस्माइला को इब्राहिमा पे, इन सबको अतफ कर दें, इब्राहिम मातूफ अलैह, और अपने सारे मातूफात इस्माइल व इसहाक व याकूबा व अस्बात के साथ मिलकर अला के लिए मजरूर, अला जार अपने मजरूर से मिलकर उनजिला के मुतल्लिक, उनजिला फेल नाइबुल फाइल, फेल मजहूल है तो आगे नाइबुल फाइल और मुतल्लिक से मिलकर मा मौसूला का सिला, मौसूल सिला मिलकर फिर पिछले मा पर अतफ कर दें या इसको मातूफ सानी कर दें, अल्लाह लफ्ज जलाला को मातूफ अलैह, बाकी मातूफ अव्वल मातूफ सानी मातूफ सालिस सबको उस पर अतफ करके, तो अल्लाह के साथ जो अब हो रहा है यहाँ पर जो उनकी हालत है इस वक्त, ये बा हरफ जर के लिए मजरूर है, तो ये जार मजरूर मुतल्लिक हो रहा है, तो ये सारे फिर वो ही होगा जो कि अल्लाह मातूफ अलैह के साथ हो रहा है. ये है. आगे वमा ऊतिया वो भी इसी तरह है, मा मौसूला ऊतिया ये बाबे फाल का मजहूल है माजी का. ये अब आपको वजन थोड़े बहुत पता होने चाहिए कैसे बना है, ठीक है, उफिला का वजन है. तो उसमें ये था तो ऊतिया हमजा, लेकिन वो बाद में वाव में बदल गया. ये सारे कायदे आपको थोड़े बहुत आने चाहिए. ऊतिया आगे मूसा व ईसा व नबी यूना, और जो उनको दिया गया, ये आता यूती, अता याती बाब दौरा बा से आए तो होता है आना, बाब इफ़आल से आए तो मुतद्दी बन जाता है देना. ये दो मफूल डिमांड करता है, किसको दिया और क्या दिया, बाज़ में एक मफूल महजूब भी हो सकता है. तो और लेकिन ये जो नाइबुल फाइल होता है, मजहूल होते हैं ना जब दो मफूल वाले, तो मुतद्दी जो वो मुतद्दी अफ़आल जिनके दो मफूल होते हैं, जब आप उनका मजहूल बनाते हैं तो पहले वाला उनका मफूल नाइबुल फाइल बन जाएगा, हालत रफा में आ जाएगा, दूसरे वाला मफूल ही रहेगा. वमा उतिया पहले वाला इसके अंदर नाइबुल फाइल आ गया, दूसरा मूसा व ईसा व नबी यूना, और जो ठीक है ये एक दूसरे पर अतफ होकर ईसा व नबी यूना, ये मूसा अलैहिस्सलाम इन पर इनके अतफ करके तो आप इसको मफूल बनाते हैं, उसका मफूल सानी. अब मिर रब्बिहिम, अन नबी यूना के बाद आ रहा है, अन नबी यूना का अल एक राय के मुताबिक इस्तगराकिया है, इसका मतलब है तमाम नबी, और मिर रब्बिहिम इसके बाद आ रहा है, तो मिर रब्बिहिम को आप इसका चाहे आप इसके आप इसका मुतल्लिक भी कर सकती हैं, आप इसका हाल भी कर सकती हैं, तो ठीक है जो आपको आसान लगे. जैसे देखिए इसका ताल्लुक नबी अन नबी यून के साथ बना, इसका ताल्लुक अन नबी यून के साथ हो गया, और फिर ये मैं उम्मीद करती हूँ मैं बहुत क्विकली बता रही हूँ, बहुत दफा हम ये सब कुछ कर चुके हैं, इससे मिलती जुलती आयत और ये वाली आयत खुद भी.
अब ये क्या बना, ये भी वमा ऊतिया मूसा व ईसा व नबीयून मिन रब्बिहिम को अन्नबीयून के मुतल्लिक उसका हाल बना दे, और मूसा मातूफ अलैह और ईसा व नबीयून ये दोनों मातूफ अव्वल और सानी, ये तो मातूफ अलैह अपने मातूफात से मिलकर ऊतिया का मफूल बिही सानी हो गया, और ऊतिया फेल नाइब अपने नाइब फाइल और अपने मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर मा मौसूला का सिला, और मा मौसूला को वो पीछे फिर अतफ कर। तो अल्लाह लफ्ज़ जलाला मातूफ अलैह अपने तीनों मातूफात के साथ मिलकर, मेरे ख्याल तीन ही बने हैं, इनके साथ मिलकर ये मजरूर हुआ बा के लिए, बा जार मजरूर मुतल्लिक कर दे आमन्ना, आमन्ना फेल अपने फाइल नानू और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर मकूलुल कौल। बहुत सिंपल है, छोटी 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 बातें हैं जो आपको आती हैं, इनको आप, मैं उम्मीद करती हूँ तैयारी के वक्त आपने देखा होगा। अगला जो जुमला ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, इसको चाहे तो हाल बना दें, इससे अगले वाले को इस पर अतफ कर दें, ठीक है। नहीं समझ आती तो कुछ भी ना बनाएं, चलने दे आगे। कह दीजिए, फरमा दीजिए इसमें अल्लाह ताला, ये पिछली दफा भी कुछ अर्सा पहले भी ऐसी आयत गुजरी थी कि वो चाहे जो भी कर रहे हैं कह रहे हैं, हमारा ये तर्ज अमल मुसलमानों का ये होना चाहिए कि हमने ये कहा कहना है। कह दीजिए हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर जो हमारी तरफ नाजिल किया गया या उतारा गया, और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर उतारा गया। असबात होता है ऑफ स्प्रिंग, बच्चों के बच्चे, खासतौर पे पोते पोते वगैरह, ठीक है। और जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया। और आगे हम, अब आहदिन, मैंने आहदिन बैना के लिए मजरूर है तो नकरा है, इसके बाद मिनहुम जार मजरूर उसकी सिफत। अब हम यूं करेंगे, अब हम उनमें से, ठीक है, बात जरूरी नहीं कि बिल्कुल मौसूफ सिफत का वैसे बने, आप ये देखें कि ये कैसे बनेंगे। अच्छा, और लान फरीक बैन आहदिन, तहमीना मैं आपका मैसेज देखती हूँ, अगर मुझे टाइम मिला, नहीं तो आप मुझसे ना पर्सनल में बाद में जरूर पूछिएगा, ठीक है। लान फरीक बैन आहदिन, बाज़ दफा ना मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, बाज़ दफा ये कि अल्लाह की तरफ से मैं जवाब फौरन दे भी देती हूँ, बाज़ दफा फिर मुझे होता है कि नहीं, मैं अपनी कोई बात भूल ना जाऊँ। हम उनमें से किसी एक के दरमियान फर्क नहीं करते, और हम, आप हालांकि भी कर सकते हैं या इस वाव को हालिया बना रहे हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं, और हम मुसलमान हैं, इस्मुल फाइल है, ये अस्लमा युस्लिमु से मुस्लिमून उसकी जमा है। अब लाहू इसके मुतल्लिक है, मुतल्लिक को बाद में आना चाहिए, मुतल्लिक अगर पहले आ जाता है तो फिर भी हसर पैदा हो जाता है, तो आप यूं भी कर सकती हैं। और हम ही, हम उसी के लिए, हम उस ही के लिए मुसलमान हैं, ताबेदार हैं, फर्माबरदार। चलें जी, अगली आयत की तरफ चलते हैं। ये अब आगे आ जाए मेरे ख्याल में, ये आप कर दें तस्मीया, इसको कर दें, फिर आगे अफरुका को जी बना मैम। जी कीजिए। वमन यब्तगी गैरिल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु फलईन, वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। वाव मुस्तानिफा मन शर्तिया मुब्तदा यब्तगी बागैन या मादा बाबे फाल बाब दोबारा बताइए। बागैन या बाब बाबे फाल। नहीं, बाबे अफाल है तो फिर ताक या तो मादे की होगी, जी मादे की हाँ। तो नहीं बताई आपने। बाबे इफ्तियाल, इफ्तियाल इफ्तियाल जी। ठीक हो गया, इब्तगा इब्तगा यब्तगी, यब्तगी जी। शाबाश, तो ये एहतमाम यब्तगी करते होना चाहिए था, बागैन या किधर या गई। मैम ड्रॉप हो गया। माशाल्लाह, शाबाश, मन शर्तिया की वजह से ये मुदारे को जी मजूम करता है, ये शर्त, ये इसम शर्त है जो जाजिम होता है, शाबाश। तो गैर अल इस्लामी को क्या बनाएंगी, जी। गैर अल गैरिल इस्लामी इस्लामी। मैम ये मुदाफ नहीं, मुदाफ मुदाफ इलैह मफूल भी गैर तो हमेशा मुदाफ आता है, मैंने शुरू में बता दिया, अब बनाएंगी क्या, मफूल मुदाफ भी मुदाफ। मफूल आप भी इसको मफू भी बना रही हैं, तो फिर दीनन को क्या मुब्तदा बनाएंगी। की खबर भी बनेगा ना मैम। ये मन मुब्तदा की खबर बनेगा ये। नहीं, तस्वीर देखें, अगर आप मन को शर्तिया कह रही हैं तो इसकी तरकीब ऐसी होगी कि मन मुब्तदा और शर्त और खबर जवाब बनेगा। शर्त दोनों मिलकर खबर बनेगी। मैंने आपसे वो नहीं पूछा, मैंने पूछा गैर अल इस्लामी को क्या बनाएंगे, और फिर दीनन को क्या गैरिल इस्लामी में मफूल भी ही बनाएंगे। जी, या मफूल भी मुतालिक। बना सकते हैं, ठीक है, मुतल्लिक भी कर सकते हैं, और दीनन को क्या बनाएंगी। दीनन तम तमीज अच्छा, यहाँ ना बनेगा मैम। छोटा सा पॉइंट है, आप बहने, अल्लाह करे कि मैं आपको समझा सकूं, यानी कि जो मुझे समझ आई है वो मैं आपको बता सकूं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप दोनों को चाहे मफूल बना दे, एक बार सुन ले मुझे। वो जी मैं अब तागी, और जो चाहेगा, या जो
तलाश करेगा गैर अल इस्लामी, इस्लाम के अलावा, क्या क्या इस्लाम के अलावा, और इस्लाम के सिवा। तो ये और दीन तमयीज है जी दीनन, अगर समझ आ जाए। फिर तमीज दूसरी राय, अगर नहीं समझ आती छोड़ दें। दूसरी राय ये कि दीनन को बनाए मफूल बिही, और अब देखिए मेरे तर्जमे पे गौर कीजिएगा, और जो चाहेगा या जो तलाश करेगा कोई दीन इस हाल में कि इस्लाम के अलावा, तो फिर गैर इस्लामी को हम इसका हाल बना सकते हैं, नकरा से पहले जार मजरूर या ज़र्फ मुदाफिल आए तो उसका हाल बन सकते हैं। और अगर किसी जी। बहन को कोई बात भी नहीं समझ आई, इसमें से कोई बात नहीं, आप छोड़ दें, दोनों को मफूल बना के ना तर्जमा कर दें। करें जी तर्जमा दीनन तक। और जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहे। शाबाश, शर्त है ये। और जो कोई, और जो जी। और इस्लाम के जो अलावा कोई और दीन चाहेगा या तलाश करेगा तो क्या होगा जी? जवाब शर्त बताएं। जवाब जजाइया और लन, जी वो नफी, स्ट्रॉन्ग नफी का मफहूम देगा। ठीक है। और युकबला फिर में खौफ बालाम, इसका मादा बाबे सिन से, और मिनहू मुताल्लिक। युकबाला और कौन सा सीगा है और कौन सा ये मारूफ है? मजहूल है मैम। मजहूल है, क्योंकि तर्जुमे पे असर पड़ेगा इसके। शाबाश, हुआ नाइबुल फाइल क्या नाइबुल है? फाइल है, हुआ हुआ इसका नाइबुल फाइल, नाइबुल मिनहू फाइल। इसके मुताल्लिक कर दें। जी युकबालू फेल अपने नाइबुल फाइल और अपने मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर, आपने ये लन की वजह से क्या हुआ, युकबालू से युकबाला हो गया, जी। लन ने मंसूब हुआ। मंसूब कर दिया, ऐसे कहते हैं जी मुदारे मंसूब। शाबाश। दायरा, तो जी ये जवाब शर्त हो गया, ये वाला जी। जुमला फेल गया। तो फिर शर्त और जवाब शर्त मिलकर मन, खबर। अगर आपने मन को शर्तिया बनाया हुआ तो उस मुब्तदा की खबर बन जाएगी। तर्जुमा होगा, और जो कोई इस्लाम के सिवा, इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा या तलाश करेगा तो वो उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। सारी कायनात का जो दीन है वो असल में इस्लाम ही है। इस्लाम का मतलब ही यही है कि अल्लाह ताला की ताबेदारी, अल्लाह ताला को एक मानकर अल्लाह ताला के तमाम अहकामात की ताबेदारी, फरमाबरदारी, अल्लाह ताला की कायनात का एक एक जो भी जर्रा है, एक एक चीज अल्लाह ताला के लिए मुसलमान है। अल्लाह ताला के लिए आप कह लें कि उन सबका यही दीन है, जो पैगंबर आए हैं आज तक उन सबका यही दीन है। लेकिन अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस वाले इस्लाम को जो हमारा दीन है, क्योंकि इस्लाम इसलिए स्पेसिफिकली कहा जाता है कि अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आखिर नबी जो वो हैं, उन पर ईमान लाना जरूरी है। अदरवाइज उनसे पहले भी ये सबको इस्लाम, इनके दीन को, और मुसलमान इनको कहा जाता था। ठीक हो गया जी। और बाकी सारी कायनात अल्लाह ताला की फरमाबरदार है। ये शर्त और जी। जवाब शर्त मिलके मन मुब्तदा के लिए खबर, मुब्तदा खबर मिलके जुमला इस्मिया। तर्जुमा हमने कर दिया, मैं एंड पे फिर कर देती हूँ। आगे चले। वाह हुआ फिल आखिरती मिनल खासिरीन। वाव मुस्तानिफा में हुआ मुब्तदा, फिल आखिरति मुताल्लिक, मिनल खासिरिन जार मजरूर, खबर हुआ की। और वो आखिरत में मिनल खसारा खासिरीन, उठाने वालों शाबाश, से ठीक हो हो गया। होगा। जी खासिरीना इसमें फाइल के वजन पर है। तर्जुमा करें। जी। और वो आखिरत में खसारा उठाने वालों से होगा। में से होगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी। आप इस वाव को चाहे तो आतिफा कर दें, चाहे अलग से कर दें। और माशाल्लाह आप म्यूट कर दें। बारकल्ला फीक। अब मफरूका आ जाए, उससे जी पहले मैं एक दफा इसका तर्जुमा कर दूं। वमई यबतगी गैर अल इस्लामी दीनन, और जो कोई इस्लाम के सिवा, इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा या तलाश करेगा। अब मैंने आपको राय बता दी है तरकीब की, कोई इनमें से समझ आए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जवाब शर्त, तो वो उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। लन की जोरदार नफी। ठीक है। कोई भी दीन, बस जो अल्लाह ताला ने कहा, जो अल्लाह ने बताया, बस वही है, उसके अलावा कोई चीज किसी से कबूल नहीं की जाएगी। वाहुवा फिल आखिरत, और वो आखिरत में खसारा उठाने वाले, खसारा पाने वालों में से होगा। शाबाश। आयत नंबर 86 की तरफ चलते हैं जी। मफरूका आप आए, इसे पढ़ें और इसका करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाकी सब बहनें माइक म्यूट रखें। ये कैफा को छोड़ दें। कैफा इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा अब बताऊंगी, बाकी मैं डिटेल से इसको, मैं एक दफा पहले भी डिस्कस किया था, आगे इंशाल्लाह फिर इसको करेंगे। आप आगे चलें। कैफा यहदिल्लाह। यहदिल्लाहु कौमन कफरू बअद ईमानिहिम। यहदी फेल मुजारे है, हा दाल या इसका मादा है बाप दौत से। अल्लाह लफ्जुल जलाला फाइल है। कौमन मफऊल। कफरू जमा मुजक्कर गायब, हम फाइल है। बाद अजर ईमानिहिम मुरक्कब इजाफी होकर मुजाफ इलैह, और बाद ईमानिहिम मफऊल बिही या जर। कौमन मौसूफ, और कफरू बाद ईमानिहिम सिफत।
वशहिदु अन्ना ये रसूल बस यहाँ पे रुक जाए, रसूल बस अभी यहाँ पे रुके, शाबाश। कैफा यहदिल्लाह, कैफा का ये है कि ये अस्माए इस्तिफहाम में से है। इसकी तरकीब मोटी मोटी याद रख लें, वैसे बहुत डिटेल है, इसको देखना होता है कि किस माना में इस्तेमाल हो रहा है और कोई खास तौर पे बस इतना याद रख लें, जुमला इसलिए में आए ना, खबर मुकद्दम बना दिया करें, क्योंकि जो अस्माए इस्तिफहाम है ये जुमले की सदारत चाहते हैं, आते हैं जुमले की। जुमला फेलिया में आए थोड़ा सा लाजिम और मुतद्दी का देखना होता है कि अगर तो लाजिम के लिए आ रहा है तो डेफिनेटली हाल बनेगा, मुतद्दी के लिए आ रहा है और उसका एक मफूल होता है और वो आ गया है तो फिर भी हाल बनेगा, नहीं तो अकॉर्डिंगली ज्यादातर हाल ही बनता है। बस इतना ही बहुत है। अल्लाह लफ्ज जलाला फाइल हो गया, कौमन मफूल बिही नकिरा है तो उसके बाद जुमला काफरू बाद आए ईमान ही, उस जुमला उसकी सिफत हो गया। कैफा यहदिल्लाहु, अल्लाह मैं फाइल का सबसे पहले, अल्लाह कैसे हिदायत देगा, फिर बीच में मफूल, अल्लाह उस कौम को, प्लीज अपने माइक म्यूट रखें, अल्लाह उस कौम को, या मौसूफ बना रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं अल्लाह ऐसी कौम को, लेकिन मैंने देखा ज्यादातर लोगों ने कौम का ना लोगों के साथ तर्जुमा किया हुआ है, तो ठीक है, अल्लाह इन लोगों को या ऐसे लोगों को कैसे हिदायत देगा जिन्होंने अपने ईमान के बाद कुफ्र किया। अब यहाँ से वो आयत शुरू होंगी जिसमें जिक्र है कि कुछ लोग थे अंसार के जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया, फिर मुर्तद हो गए, और 10 से 12 लोग थे, वो फिर मक्का चले गए, लेकिन बाद में उनमें से एक को रिग्रेट हुआ बहुत, तो उन्होंने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछवाया, पता करवाया कि कोई तौबा हो सकती है, तो अब ये आयत उनके बारे में चल रही है कि हाँ उनकी हो सकती है कि जो जिन्होंने तौबा की और अपनी इस्लाह कर ली, लेकिन उनकी नहीं होगी जिन्होंने ना सिर्फ के कुफर किया, उसमें बढ़ते गए और बल्कि उल्टा मदद की मुसलमानों के खिलाफ, और बल्कि इस हाल में मर गए। तो ये थोड़ा सा हम आगे चल के इन चीजों को देखेंगे, उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, तो ये अब इसके बारे में जिक्र है। अल्लाह उस कौम को या उन लोगों को कैसे हिदायत देगा जिन्होंने अपने ईमान के बाद कुफर किया। अब आगे जो वाह शाहिदू है, बाज लोगों ने क्या किया, शाहिदू को कुछ उलमाए कराम ने ईमान ही, इसको ईमान को फेल के माना में लेकर इसको इस पर अतफ कर दिया, लेकिन आप इस वाव को हालिया बना ले, कुछ भी समझ नहीं आती तो बस चलती जाए, मतलब तो पता चल रहा है ना। तो अगर वाव को हालिया बना लेंगे तो हालांकि के साथ कर ले, वरना और, तो हालांकि उन्होंने गवाही दी थी इस चीज की, ठीक है जी, करें मफरूका व शाहिदू। शहीदु फेल माजी है, हम फाइल है, अन्ना हरफ समिया है, मुसब्बब फेल है, और रसूल ठीक है, इस्मो इन्ना है, हक्कुन खबर इन्ना है, और ये अन्ना अपने इसम और खबर से मिलके क्या बना, मफऊल बिही। शाबाश, ठीक है। अब देखिए अन्ना जो है ना जुमले को जुमला नहीं रहने देता होता, वो मुफरद बना देता है, मस्दर की तावील में ले जाता है, तो अब जो मर्जी बनाए इसको, एक राया ठीक है, आप मफूल भी बना ले, किस चीज की गवाही दी, और अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो याद रखें जिस चीज की गवाही दें वो आमतौर पे बा के सिला से आती है, और इससे अन्ना से पहले बा या पे के हरफ जर महजूफ मानकर तो ये मुतल्लिक भी कर सकते हैं शाहिदों के। ये चीजें हैं जो बार बार आएंगी तो खुद ही याद हो जाएंगी, याद करने की जरूरत नहीं तो बस सिंपल मफूल भी ही बना। और उन्होंने किस चीज की गवाही दी, उन्होंने किस चीज की शहादत दी, हालांकि उन्होंने, यकीनन रसूल सच्चे हैं। शाबा, ये अर रसूल अल लगा हुआ, ये पीछे जिक्र हो गया है आधे जिक्री, यानी कि ये आधे खारजी, सॉरी, ठीक है, यानी कि ये रसूल सच्चे हैं, हालांकि उन्होंने गवाही दी कि ये रसूल सच्चे हैं, और ये इस वाव को आतिफा बना दे, ये हाल ही जी, चल रहा है, और क्या क्या, जा जाअहुम जाअहुमुल बय्यिनात, जाअ फ़िल माज़ी है, हुम मफ़ऊल है, बय्यिना अल बय्यिनात फ़ाइल है। बय्यिनातु मुअन्नस है तो यकीनन इसके साथ जाअत क्यों नहीं आया, ये गैर हकीकी मुन्नस हो तो फिर फ़िल मुज़क्कर मुअन्नस तो ना सकते हैं। अच्छा आपकी ना आवाज कट रही है, रिहाना जी आपने हैंड रेज किया, मेरा ख्याल है आप शायद क्लास में आज शुरू में नहीं थी, मैंने आपके लिए आज क्लास में मैंने दुआ की, मैंने बात की है, अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला दे। अगर तो आप वही बात के लिए रिमाइंडर दे रही हैं तो आप हैंड डाउन कर नहीं लें, नहीं कुछ नहीं, मैं पूछना सोची चाहती थी हैं मैं तो। सुना लूं। मैं बस मैं ना थोड़ा सा लेट हो गई थी, नेट नहीं कनेक्ट हो रहा था मेरा ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं देखिए यहाँ रोल नंबर वाइज इस क्लास में थोड़ा रोल नंबर के हिसाब से, थोड़ा बहुत अच्छा ज्यादा अच्छा, तो सब ठीक, नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। आपका रोल नंबर क्या है आपका, रिहाना जी आपका रोल नंबर क्या है, अच्छा चले देख लीजिएगा, अगर आपका रोल नंबर मेरे ख्याल बाद में है जरा, 14 है, 14 14। अच्छा आपका 14 है, चले देखते हैं, शायद आधे बीच में कुछ बहनें अक्सर नहीं सुनाती हैं, चले मुझे पता नहीं जी, चलता। उन्होंने पता नहीं क्या कहा, तो मफरूका ने मेरे ख्याल सही बताया होगा, आवाज कट गई थी,
गैर हकीकी मुअन्नस है गैर अलबय्यिना। हकीकी मुअन्नस है, ये उन 4 चीजों में से एक है जिसके साथ फेल मुजक्कर भी आ सकता है, मुअन्नस भी आ सकता है। शाबाश। हकीकी मुअन्नस के साथ भी मुजक्कर भी आ सकता है, मुअन्नस भी, अगर फेल और फाइल के बीच में गैप आ जाते। शाबाश। अच्छा जी, तर्जमा करें। हालांकि उनके पास, और उनके पास उनके पास वाज़ेह दलीलें आ चुकी। वाज़ेह दलीलें भी आ चुकी वल्लाह हैं, वो गवाही भी दे चुकी हैं, और वाज़ेह दलाइल, वाज़ेह निशानियां भी आ चुकी हैं। आगे चलें जी। वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। वाव नाफिया लफ्ज़ जलाला मुब्तदा ला नफी यहदी फिल मुज़ारे बाब से अल कौमा मौसूफ और ज़ालिमीन सिफत और मौसूफ सिफत मिलकर मफऊल बने। और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। शाबाश। आपकी आवाज कट रही है, थोड़ी सी अगर पोजीशन चेंज कर लें या थोड़ी देख लें ताकि अगली आयत भी मैं आपसे सुन सकूं। अल्लाह, अल्लाह लफ्ज़ जलाला मुब्तदा, आगे जुमला फेलिया, ला यहदी, ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। ये जुमला फेलिया जो है, फेल फाइल और फाइल इसका हुआ क्योंकि अल्लाह की तरफ राजे है, और मफूल बिही के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर खबर, अल्लाह लफ्ज़ जलाला मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया होकर, आप इसको इस्तिनाफिया रखें। मैं सारा तर्जुमा एक दफा कर देती हूँ। कैफा यहदिल्लाहु कौमन, अल्लाह उस कौम को या ऐसी कौम को या इन लोगों को कैसे हिदायत देगा जिन्होंने अपने ईमान के बाद कुफर किया, हालांकि उन्होंने शहादत दी या गवाही दी कि बेशक ये रसूल सच्चे हैं, और उनके पास वाज़े दलाइल या वाज़े निशानियां आ चुकी हैं, ठीक है। और अल्लाह जालिम कौम को, जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। ये जुमला इसमिया बन रहा है ओवरऑल, इसमें हमेश की दवाम पाया जाएगा जी। इसको करें, बहुत सिंपल है, जल्दी से कर लेते हैं। जी आयत नंबर 87। उलाइ का मुब्तदा है, फिर जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतल्लाहि ये खबर है, फिर जज़ाउहुम मुरक्कब इजाफी होकर मुब्तदा, अन्ना अलैहिम अन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ैल, अलैहिम खबर मुकद्दम, लानता लानतल्लाहि मुरक्कब इजाफी और ये इस्म मुअख्खर हो गया और फिर ये खबर बन गई। और अन्ना अलैहिम लानतल्लाहि ये जज़ाउहुम मुब्तदा की खबर बनी। ठीक है। ये कह रही है कि उलाई का मुब्तदा, आगे उसकी खबर थोड़ी जी लंबी है, वो खुद एक जुमला इसमिया है। उसमें जज़ाओं को क्या बनाया आपने? मुरक्कब इजाफी होकर मुब्तदा मुब्तदा, और अन्ना अपने इसम, और लानतल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, ये सारा इसम, और खबर अलैहिम खबर मुकद्दम से मिलकर ये अब जुमला तो नहीं रहेगा, इसको अब क्या बना लेंगे, ये मस्दर की खबर। तावील में हो गया मुफरद, इसको खबर। तो जी जज़ाउ मुब्तदा अपनी खबर, ये सारी एंड तक इससे मिलकर जुमला इसमें होकर उलाई का मुब्तदा की खबर। तो थोड़ा तर्जमा करते हुए हम इस चीज का ख्याल कर सकते हैं। अब हम मुब्तदा को अलग से करेंगे और जो उसकी खबर जो एक खुद जुमला इसमें है उसको थोड़ा अलग अंदाज से करेंगे। तो वन्नास अजमाइन, ये अजमाइन का मैंने शुरू में बता दिया, ये बेसिकली यहाँ पे अन्नास की उसके लिए आया है। बाज के मुताबिक ये सबकी ताकीद, बाज के ये अन्नास की ताकीद के लिए। तो इसमें अल्लाह लफ्ज़ जलाला ये हो गया मातूफ अलैह, अल मलाइका ये मातूफ अव्वल, अन्नास अपनी ताकीद से मिलकर ये मातूफ सानी, मातूफ अलैह अपने दोनों मातूफात से मिलकर ये मजरूर हुआ लाना के लिए, और लानतुल्लाहि ये मुदाफ मुदाफिल है, ये इसमो अन्ना, अलैहिम खबरू अन्ना। बस आगे आपको बता दिए। चले जी, उलाई का मुब्तदा, पहले खबर, पहले ये आ रहा है मुब्तदा, इसका तर्जुमा करें, फिर उसकी खबर का करें, और उसको जुमला इसमिया है तो उसके हिसाब से करेगा। ये लोग इनकी जजा ये है कि बेशक इन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और मैम आगे का सॉरी है और तमाम लोगों की, लोगों ठीक की है, अन्नास। लानत है लानत है। ठीक है, तो सब के सब भी कह सकते हैं, ठीक है, या और तमाम लोगों की, अगर आप अन्नास को यूं कर लें कि इस अल को भी आप कर दें, या ये जैसे इस्तगराक किया, और वैसे ये जो इस किस्म के होते हैं ना, इनका ये थोड़ा डिफरेंट होता है, ये जो ये तो कलेक्टिव है ना एक तरह के। आप इसके अल को फिलहाल इग्नोर करते हैं, आप अजमाइन और तमाम लोगों की लानत है, ठीक हो गया जी। अब इसका तर्जुमा आप यूं कर रहे हैं, उलाई का मुब्तदा ये लोग,
اب جو خبر ہے اس میں آپ مبتدا اور خبر دونوں کا پھر اس طرح سے کریں. یہ لوگ خبر کا میں کرنے جا رہی ہوں جو کہ ایک جملہ اسمیہ ہے, اس میں مبتدا کا پہلے کروں گی اور خبر کا بعد. یہ لوگ ان کی جزا, اور بعض نے جزا کو سزا لکھا ہے, اصل میں تو سزا ہی ہے نا, تو بے شک یہ لوگ ان کی جزا یا ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے. اب یہ ہے اس لیے بیچ میں پیدا ہو گیا کہ وہ یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ یوں بھی کر سکتی ہیں, ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے. اب یوں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. مبتدا کا الگ کر لیں, خبر کا الگ کر لیں, خبر جملہ اسمیہ تو اس جملہ اسمیہ کا الگ سے پورا جملہ اسمیہ کی صورت میں کریں, مبتدا پہلے خبر بعد. اولئکا یہ لوگ, دیکھیں ویسے تو وہ ہوگا لیکن آپ جانتی ہیں اس کا یہ بھی کر سکتی ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں. یہ لوگ ان کی جزا یا ان کا اجر یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے. اب دیکھیے جس چیز پہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی لعنت ہے, لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو چاہیے ہمیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو سب کچھ ہے. تو یہ کتنی خاص اور اہم باتیں ہو رہی ہیں, ان پر آپ سب دیکھیں, غور کریں. جی آیت نمبر 88, یہ بہت سمپل ہے, جلدی سے بتا دیں, مجھے بتا دیں کیا بنائیں گی اس کو. خالدینہ اسم الفاعل ہے, فیہا جار مجرور متعلق ہو گیا, کیوں اور یہ متعلق حال, جی میم خالدینہ اسم الفاعل کے متعلق. کیا بات, اس میں فائل ان 8 چیزوں 7-8 چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق جار مجرور ہو جاتے ہیں. ویسے یاد رکھیں یہ جو اسماء مشتقات ہے نا, جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, خیر ترکیب تو شاید آپ اس میں نہ کریں, سب اسٹوڈنٹ کو ہم کرواتے بھی نہیں ہیں اتنا, لیکن اس کی اپنی ایک ترکیب ہوتی ہے. اسم فائل کا ایک اپنا فائل اس کے اندر مانا جاتا ہے, فرض کریں زیادہ تر اندر ہی ہے, پھر اس کا متعلق بھی ہو سکتا ہے, اس کا مفعول بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب کے ساتھ مل کے نا, جیسے میں کہوں گی خالدینہ اسم الفاعل, یہ اپنے یہ جو ہوتے ہیں نا اسماء مشتقات, ان کو شبہ فعل بھی کہتے ہیں, فعل جیسے ہوتے ہیں بہت سارے معاملات میں. خالدینہ اسم الفاعل اپنے فاعل ہم کر لیں, اور یہ فی اپنے متعلق سے مل کر یہ پورا جملہ نہیں بنتے, بس یہ فرق ہے, یہ شبہ جملہ بنتے ہیں. اور شبہ جملہ اسمیہ کہتے ہیں. یہ کسی کے, اب آپ کسی کا کچھ حصہ بنیں گے. اب یہ پیچھے جو چل رہا ہے نا, جن کی بات چل رہی ہے, جن پر لعنت جی کی جا میم. رہی ہے, ان کا حال ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. فی ہا, اب یہ ہاں جا رہی ہے جہنم کی طرف, پیچھے ذکر نہیں ہے, لیکن جہاں کرینہ موجود ہو نا, جہاں کسی چیز کا اسلوب انداز آپ کو پتہ چل رہا ہے, اب جنت میں تو نہیں جائیں گے یہ لعنت زدہ لوگ, تو وہ پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ہاں کا مطلب ہے کہ جہنم کی طرف, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. آگے کریں جی, وہ بھی آپ حال بنا سکتی ہیں, دوسرا جملہ بھی, لا یخفف عنہم العذاب, لا جملہ نفی فعلیہ. یخفف باب تفعیل سے ہے, فعل مضارع اور مجہول ہے, انہم متعلق, العذاب نائب الفاعل ہے, اور کیا یہ بات, حال بنے گا خالدینہ کے. اس کو بھی ہم حال زمین. بنا دے جملہ فعلیہ کو, ٹھیک ہے. جی اس کو آپ دوسرا حال نہیں, اس خالدین حال. فیہا کو حال بنا دے, دوسرے جملے کو الگ حال, انہیں لوگوں کا حال, آپ ان کو سب کا جو کہ جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرما رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا, ان پر لا یخفف عنہم العذاب, ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا, اس لا کو کیا بنائیں گی؟ لا نفی, نافیہ ہے لیکن واو عاطفہ کے بعد تاکید. آتا ہے, تو یہ زائدہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور جی تاکید کے لیے آتا ہے. اور اس کا ترجمہ کریں گے, نہ ان سے عذاب ہلکا کیا تاکید. جائے گا اور نہ ہی ہم جی. ینظرون. ینظرون کیا ہے؟ مجہول ہے, یہ ذرا اور یہ نکالیں آپ, خبر ہے. ہم نے کوئی بھی خبر لفظ نہیں ہے, دیکھا, آیات تھوڑی زیادہ تھی, اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی اس کو ریوائز کیا تھا. یہ خبر پیج ہے میم. 472 نکالیں, سب بہنیں 472 پیج نکالیں. ناظرہ ینظرو یہ بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بعض صرف کسی کو ایسے دیکھنا, جیسے میں اس وقت کمرے میں کوئی بھی چیز, پنکھا دیکھ رہی ہوں, ٹی وی دیکھ رہی ہوں, کلاک دیکھ رہی ہوں, بس دیکھنا. بعض دفعہ ہوتا ہے صورتحال سمجھنے کے لیے, کچھ سچویشن سمجھنے کے لیے دیکھنا, سمجھنا. پھر یہ ہوتا ہے کچھ غور و فکر کرنا. پھر ہوتا ہے مہلت دینا. یہ بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جب یہ جاتا ہے باب افعال میں, تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے زیادہ تر, کسی کو مہلت دینا. اور باب افتعال میں جائے تو انتظار کرنا. اس کا دیکھیں کتنا فرق ہو جاتا ہے. اب یہ ینظرون ہے,
تو یہ جو ینظرون ہے تو مجہول، لیکن یہ کس باب سے آیا ہے یہ اب آپ دیکھیں گی. جی بتائیں کس باب سے آیا ہے یہ؟ باب نون سے ہے. اچھا باب ناصرہ سے کر رہی ہیں. ہاں اس میں بھی ویسے ہے مہلت دینا، لیکن مہلت دینا عام طور پہ جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے نا باب افعال سے آتا ہے. تو یہ باب افعال سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کا اگر اس کو مجہول بنا لیں. ویسے دونوں سے ہے، لیکن میں پھر آپ سے کہوں گی باب افعال پیور اس کا مطلب ہی ایک ہے مہلت دینا، جبکہ جو باب ناصرہ ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں، وہ اکارڈنگلی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. خیر دونوں سے کر لیں اٹس اوکے. تو ترجمہ کیا بنا؟ ترجمہ کریں. جی میم. ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. شاباش. نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. ہم مبتدا، آگے اس کی خبر جو کہ مجہول ہے. فعل یہ ینظرون فعل اپنے نائب الفاعل ہم ضمیر یا واو ضمیر اس سے مل کر یہ خبر. تو یہ جملہ اسمیہ جو ہے اس کا آپ پیچھے والے جملے پر آپ اس کا عطف کر دیں. باقی پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھا کریں، کہیں کوئی جملہ اسمیہ آ رہا ہے تو کیوں آیا ہے اس کا یہی ہے، اس میں ہمیشہ اور دوام والا سین ہوگا، یہ سسٹم ہوگا اس میں. اور جملہ فعلیہ ہے تو اس میں کوئی زمانے کی لمیٹیشن اس میں پائی جاتی ہے. اچھا جی آیت نمبر 89 آپ کر دیں، پھر کسی اور کو بلاتے ہیں. اچھا اب یہ جو سب یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا ان سے یہ پوچھوایا تھا، انہوں نے پتہ کروایا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو یہ کریں گے، جو کفر کریں گے پھر اس کو یہ کریں گے اور ان پہ لعنت ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے یہ جہنم میں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد ان کی توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، تو ان پر اللہ تعالیٰ بے حد غفور و رحیم ہے. تو ان کو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ٹھیک ہے، وہ دوبارہ سے پھر مسلمان ہوتے تھے. تو اب یہ الا الذین پچھلی آیت کے ساتھ ہے. میں انشاءاللہ آگے کبھی موقع ملا نا آپ کو یہ اللہ کو بھی تھوڑا سا حرف استثناء کو دیکھ لیں گے. یہاں پہ یہ حصر کے لیے نہیں، حرف استثناء کے لیے آیا ہے. اور چونکہ اس سے پہلے وہ لوگ موجود ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو رہی ہے اور جو سارے موجود ہیں، تو اسے کہیں گے استثناء. یہ ایک ہوتا ہے مفرغ جس میں سے نکالا جا رہا ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا، وہ حصر والا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جس میں ذکر ہوتا ہے، تو وہ جس میں ذکر ہوتا ہے پھر اس کی تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے آگے سے دو قسمیں ہیں کہ جس میں سے نکالا جا رہا ہے کہ وہ اسی جنس کا ہے یا وہ کسی اور جنس کا ہے. اسی جنس کا ہے تو متصل، تو یہ متصل ہے بیسیکلی، یہ حرف استثناء متصل ہے، یعنی کہ پیچھے ذکر بھی ہوا ہے اور اسی کے جنس کے وہ لوگ ہیں جس میں سے ان کو نکالا جا رہا ہے. تو یہ اسلحہ تک پچھلی آیت سے ملا لیں اس کو، اور اگلا جو وہ جملہ استنافیہ کر لیں. جی الا الذین. جی میم. اللہ حرف استثناء ہے، الذین اس میں موصول ہے، تابو تا با واو اور باب نون سے ہے. تا با واو نہیں ہوگا، تا واو با، وہ بیچ میں واو پھر الف میں بدل جائے گی. جی الف ہاں مادے کا سوری. حصہ کبھی بھی نہیں ہوتا. ہاں یہ بدلا جی ہوا میم ہوتا ہے واو. سوری. یا شاباش باب تا ناصرہ. با تابا با ہے. جی. فائل ہم فائل ہے اس میں. ٹھیک ہے. من بعد اور ذالکہ کو کیا بنائیں گی؟ یہ متعلق. یہ متعلق ہوگا. ٹھیک جی. ہے جی. تو تاب و واو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے اللہ زینہ اسم موصول کے لیے صلہ، صلہ. جی. موصول صلہ. یہ میں انشاءاللہ پھر جب کبھی ڈسکس کریں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اللہ کے بعد جو اعراب ہے نا وہ زیادہ تر اس کو منصوب مانا جاتا ہے. اگر اللہ سے پہلے کوئی مستثنی من ہو جس میں سے نکال رہے ہیں آپ، وہ اس کا ذکر کیا ہوا ہے اور جملہ مثبت ہے، تو پھر یہ اللہ کے بعد والا اعراب اس کو محلن یا جو بھی ہے اس کو منصوب مانا جاتا ہے. یہ فی الحال چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. تو آگے واصلہ کو کس پر عطف کریں گی؟ تابو پر. شاباش. تو تابو فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر معطوف علیہ، و اصلہ فعل فاعل معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ ہے. تو یہ صلہ بن رہے ہیں اللہ زینہ کے لیے. اللہ زینہ موصول صلہ مل کر پچھلے والے کے لیے کچھ میں نے آپ کو بتا دیا استثناء مستثنیٰ کہیں گے اس کو. یہ پیچھے میں سے کچھ نکالا ہے ہم نے. یہ یہاں پہ اللہ حصر کے لیے نہیں ہے. حصر کے لیے تب ہوتا ہے جب اس سے پہلے کوئی حرف النفی وغیرہ آتے ہیں تو پھر ہم جب ترکیب کرتے ہیں تو اس حرف النفی اور اللہ کو گرا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد والے کو پچھلے سے ملا دیتے ہیں. لیکن ایسی صورت میں یہ اس کی ترکیب تھوڑی اور ہوگی. اب یہ جو اللہ کے بعد والا ہے یہ پچھلے والے کے لیے ہی دیکھنا پڑے گا کہ آپ انہیں اس کو کیا بنانے ہیں. ان کی ترکیب تھوڑی مختلف ہے، ان کا اعراب تھوڑا مختلف ہوتا ہے. زیادہ تر بس اتنا یاد رکھیں جب تک موقع نہیں ملتا نا کروانے کا. بس ایک بات، اگر تو اللہ سے پہلے حرف نفی آ رہا ہے تو وہ اللہ حصر کا ہے، اس کا تو بہت سمپل ہے، حصر پیدا ہو گیا اور ترکیب میں اس کو گرا دیں. اسے مفرق کہتے ہیں، مستثنی مفرق. لیکن اگر
इल्ला से पहले मुस्तस्ना मिन्हु इसमें से निकाल रहे हैं, उसका जिक्र आया है और जुमला मुस्बत है, ये दो बातें हैं। तो इल्ला के बाद वाला जो है वो आमतौर पे वो इसका एराब हम वो लेते हैं महल्लन मंसूब या मंसूब जो भी है, फिर जो भी बनाना है वो जब कभी इसराया करेगा मैं आपको इंशाल्लाह इसका बता दिया करूंगी, फिलहाल इसको छोड़ दे। ठीक हो गया जी। सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इसके बाद तौबा कर ली और अपनी इस्लाह है, उनके अलावा बाकी सब के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि वो हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, ना उनसे अजाब हल्का किया जाएगा, ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे जी। अल्लाह ताला की बहुत प्यारी शान से मुतल्लिक जो आयात हैं, जुमला मुस्तानिफा करें इसको। फा तालिलिया इन्ना और इन्ना हर्फ मुशब्बा अच्छा, बिल आप इस फ़ेल फा को होती है। आपने क्या बताया, तालीलिया? जी मैम, आप इसको वो तालीलिया क्यों बना रहे हैं? सर ने बताया था। अच्छा ठीक है, बना शामिल सकते हैं। करो आप जी। मेरी बात सुने, वैसे इसको ज्यादातर लोगों ने ना फा फसीहा बनाया है, ठीक है। फा फसीहा वो होता है कि जिसकी शर्त छुपी हुई है, माजूफ है, और ये जवाब शर्त। और आप जानते हैं कि जुमला इस्मिया पर जो फा आता है ना, अक्सर इस तरह से वो जवाब शर्त अगर जुमला इस्मिया हो तो उसका फा जजाइया फा जरूर आता है। आप इस फा के चक्कर में ना पड़े, बस आप अल्लाह ताला की ये शान है, इसको अलग से फा इस्तेनाफिया करके तो ले आप इसको अलग से जुमला कर, ठीक हो गया। इन्ना का इसम और खबर, इन्ना का इसम क्या है, अल्लाह खबर जल्दी से बताएं। लफ्जुल जलाला इस्मो इन्ना है, गफूरुन एक खबर, रहीमुन खबर नंबर 2, गफूर किस वजन पर है? फाउल फाउल उनके वजन पर। फाऊल मुबालगा। अब हम जब इसका तर्जमा करेंगे तो ज़हन में रखते हुए करेंगे, अल्लाह ताला के साथ इस्तेमाल हो रहा है। रहीम किस वजन पर है? फ़ाइल उनके वजन पर। फ़ईल के वजन पे भी, और ये भी मुबालगे वाला है। फ़ईल सिफत मुशब्बा का भी है, लेकिन यहाँ पे मुबालगा है अल्लाह ताला के साथ। तर्जमा करें। तो यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाले निहायत मेहरबान है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अब आप देखें कितनी बड़ी गलतियां की हैं उन्होंने, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बीच में से निकाल के उनका भी जिक्र करते हैं। बाकी अल्लाह ताला का जिसने तौबा कर ली, तौबा की अहमियत का अंदाजा करें तो अल्लाह ताला बेहद गफूर रहीम, बेहद बहुत बख्शने वाले, निहायत रहम करने वाले, बाज रहीम का मेहरबान इसका माना लेते हैं जो भी है। ठीक है, बाकी रहमान और रहीम का फर्क ये हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जुमला इसमिया है, इसमें हमेशा और दवाम है। अल्लाह ताला की खूबियां इस आयत में मुकम्मल, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में हमें पता चल रहा है कि जो लोग तौबा कर लेते हैं इसके बाद वो अपनी इस्लाह कर लेते हैं तो अल्लाह ताला को गफूर और रहीम पाएंगे। आयत नंबर 89 आगे चलते हैं, आयत नंबर 90 ये कोई और किसी से करवाते हैं माशाल्लाह। मफरूका और तस्वीरें बहुत अच्छी प्यारी। इनके बाद कौन है? रोल नंबर 6 और 7 हो गए। 8 सुनाना चाहेंगी बुशरा? और रोल नंबर 9 तो जी अस्सलाम मशहूर वालेकुम इस तरफ वरहमतुल्लाहि होंगी। वबरकातुहू। बुशरा सुनाएंगी? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरी दो आयत आपसे करवाते हैं जी, कीजिए इस्ताना। इन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फेल है, अल्लज़ीना इसमें मौसूल, इसका ये इसमो इन्ना बन जाएगा और इसमें मौसूल आगे सिला आ रहा है कफरू, और इसमें मौसूल अपने सिला से मिलके इसमो इन्ना बन जाएगा कफरू। शाबाश। काफ फारा इसका मादा है, ठीक बाबेनून है, से है, फाइल फाइल बताएं। है हुम या वाओ ठीक है, ज़मीर फाओ जमीर या हम, ठीक हो गया। बादा ईमानिहिम, ईमानिहिम सॉरी मैं ऐन पढ़ रही हूँ, बादा ज़र्फ ईमान है। और चीज है। हाँ ये क्या बनाएंगी? ईमानी है मुजाफ इलैह हो जाएगा। ये दो चीज बन सकती है, या तो मुताल्लिक कर दें या मफूल फीही भी ये बन मैं सकता फुलफिल है। कर दे क्योंकि बात ज़र्फ आया है। ठीक है, यहाँ तक का जी तर्जुमा करें। जी, ये पूरा इस्म इन्ना हो गया। बेशक वो लोग जिन्होंने अपने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया। शाबाश। इन्नल्लाज़ीना, आप तर्जुमा आप कभी आयत पढ़ेंगी ना, आप बहनों को खुद महसूस होगा कि अभी खबर नहीं आई है, अभी इसम ही चल रहा है। इन्नल्लाज़ीना कफरू बादा ईमानिहिम सुम्मज़दादू, फिर पता चल रहा है कि बाद में खबर आई है, सॉरी सुम्मज़दादू कुफ्रन, अब इसके बाद यहाँ तक खबर आएगी। जी, जी यहाँ तो तक अब ये इस्म हो सुम्मज़दादू कुफ्रन, इस जुमला फेलिया को भी आप किस पर अतफ करेंगी? गया। ये कफरू पे अत्फ होगा और काफरू फिर पर इसका सिला अतफ बन कर दे। जाएगा। कुफ्रन क्या बनाएंगी? इस दादू मैंने बता दिया था सारा शुरू में, वो कुफरन बाद ये में। तमयीज बन जाएगी कि किस चीज में ज्यादा हुए हो, तो असल में ये कुफ्र में हो। तमयीज है। शाबाश, याद रखेंगे जो रब्बी जिदनी इल्मा है ना, ये इसमें जी याद रखा करें कि इल्मन जो है, इल्मा ये तमयीज है असल में। किसी को नहीं समझ जी आती तो हम मफूल भी ही कहते, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो असल में इसका तर्जुमा होता है मेरे रब मुझे ज्यादा कर इल्म के लिहाज से रब्बी
زدنی علما، مجھے علم کے لحاظ مجھے زیادہ کر، بڑھا، کس لحاظ سے؟ علم کے لحاظ سے. ہم تو کہتے تھے میرا علم زیادہ، میرے علم میں اضافہ کر، وہ تو ٹھیک ہے ہم جیسوں کے لیے، لیکن اصل میں یہی ہے گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے. تو جب بھی کبھی زیادہ یہ والا آئے نا فعل، اس کے بعد تمییز آتی ہوتی ہے. زیادہ کرنا، بڑھانا، کس لحاظ کے لیے؟ بلحاظ، وہ تمییز ہے. سمجھ آتی ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. تو ثم ازدادوا کفرا، اس کو پچھلے کافروا والے جملے پر عطف کر دیں. وہ معطوف علیہ اپنے اس معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ جو ہے وہ اللہ زینہ کے لیے صلہ، اللہ زینہ موصول صلہ مل کر انو اسم انا، خبر انا بتا. جی لن تقبل توبتہم، توباتہم، جی توبتہم. تو لن یہ حرف نفی ہے اور مستقبل میں میننگ لے جائے گا، مضارع منصوب ہو جائے گا. جی زوردار اور اس میں تاکیدی نفی اور جی مستقبل کے ساتھ ہے. شاباش. جی اور آگے تقبلو یہ مجہول کا تقبالا، صیغہ ہے. شاید میں نے بھی غلطی سے تقبلا، تقبالو پڑھ دیا، جی جی تقبالا، استاذ. کیونکہ یہ منسوب کر رہا ہے اس کو. جی تقبلا یہ مجہول ہے، قاف با لام باب سین سے ہے اور یہ منصوب ہے. اور اس کا توبتہم فاعل کیا نائب ہے؟ الفاعل ہے. یہ نائب الفاعل توبتہم آگے نائب مرفوع الفاعل. شاباش، مرکب توباتہم. اضافیہ ہے. تو یہ جی تقبالا کیوں آیا؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ مجہول ہے استاذہ. نہیں اور میرا یہ مطلب ہے کہ مذکر مؤنث واحد کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر حاضر، اس طرح سے بتائیں کون سا ہے؟ اقبل یہ ہے مؤنث کا ہے کیا؟ جی یہ واحد مؤنث غائب کا ہے. آگے کیونکہ جی چوتھا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، یا نائب الفاعل. ٹھیک ہے، خیر میں تو نائب جی الفاعل ہے توباتہم. تو یہ کہ توبہ یہ جو ہے نا یہ مؤنث، اس وجہ سے یہ مؤنث کا صیغہ ہے. ترجمہ کر جی دیں. جی اب پھر کفر میں بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. شاباش. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، دیکھیں کافر وہ ہوتا ہے جو ایمان کو جان لینے کے بعد، اس کو پتا ہے کہ یہ صحیح ہے، جان لینے کے بعد انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے. بے شک جن لوگوں نے ایمان، اور یہاں پہ ویسے مرتد کی بات ہو رہی ہے ان سب کی. بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. آگے جی واولئک هم الضالون. جی واؤ میں نے حالیہ بنایا ہے، یا پھر عطف بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اولئک کا مبتدا ہے، ہم ضمیر فصل ہے، الضالون یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے. اسم الفاعل ثلاثی ضاد لام مجرد سے. لام اس کا مادہ ہے باب ضاد سے، یہ خبر ہو شاباش. جائے گا. ٹھیک ہو گیا. جی ترجمہ کریں. حسر پیدا ہو رہا ہے، ضمیر فصل آ گئی ہے اور خبر بھی مارکا ہے. ترجمہ کریں. جی اور وہی لوگ گمراہ ہیں یا گمراہ ہونے وہی والے ہیں. لوگ گمراہ ہیں، گمراہ ہونے والے کے اسم الفاعل کا کرنا ہے. شاباش. ضاد لام لام اسم الفاعل اگر ثلاثی مجرد سے بنے تو فاعل ان کے وزن پر دالون سے دالن، اور اگر یہ اب ہوتا نا اس میں مزید الفی میں تو اس میں پھر اس میں میم پیش والی اور تھوڑا اور طریقے سے اس کا ہونا تھا. فرض کریں کسی اور باب سے بنتا ہے، خیر ہمارا وہ ٹاپک نہیں. اس وقت یہ ثلاثی مجرد کا اسم الفاعل ہے تو یہ فاعل ان کے وزن پہ بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آخری آیت کی طرف چلتے ہیں، باقی ہو گئی الحمدللہ. یہ بھی سمپل ہے، اس سے ملتی جلتیاں پہلے کر چکے ہیں. اچھا اس کو کرنے سے پہلے نا یہ جو جی سارے کانٹیکٹ جس میں بات ہو رہی ہے ایک دفعہ میں اس کو تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ یہ یہاں پر آپ ان آیات کو اگر دیکھیں تو جو مرتد ہوا سے اسلام لانے کے بعد آیت نمبر یہ کون سی ہے جس میں وہ گواہی دی جا رہی ہے؟ ہاں آیت نمبر 86 میں دیکھیں. ٹھیک ہے، وہاں سے بات شروع ہوئی کہ مرتد ہوا ایمان لانے کے بعد، اور انہوں نے ایون ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ رسول حق ہے، واضح دلائل آ گئے، واضح نشانیاں سامنے آ گئیں، پھر بھی یہ سب کر لیا. تو ان کی توبہ اللہ نے پھر بھی قبول کر لی کیونکہ انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے اصلاح کر لی. لیکن اللہ تعالیٰ کن کی توبہ بیچ میں قبول، یہ ذکر آ رہا ہے کہ ان کی بالکل توبہ قبول اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے، ان سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ زمین بھر کے سونا فدیہ میں دے دیں، وہ کچھ بھی لے آئیں، اللہ تعالیٰ ان سے توبہ قبول نہیں کریں گے. وہ جنہوں نے، ایک صورت تو یہ ہے جنہوں نے کہ یہ جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائے لیکن بعد میں اگلے نبی کا انکار کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا. ٹھیک ہے، نبیوں کا انکار کیا، کفر کیا، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. نہ صرف کفر کیا بلکہ ابھی دوسری صورت دیکھیں کہ نہیں، یہ پہلی صورت یہ ہے. ٹھیک ہے، پہلی صورت یہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی جنہوں نے یا تو یہ کفر بھی کیا اور نہ صرف کفر کیا، وہ اس میں اتنا بڑھ گئے کہ پہلے انہوں نے اپنے بعد والے نبی کو نہیں انہوں نے
جیسے حضرت آئے حضرت موسیٰ کے بعد ان پر بھی ایمان نہیں لائے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا، اور پھر اپنے اس کفر میں بڑھتے چلے گئے. تو اس میں ایک یہ صورت ہوگی ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ قرآن حکیم میں آیات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ اس شخص کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی جو ایمان لے آیا لیکن اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا. اب مرتد کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی بلکہ اپنی اسلام دشمنی میں اپنی سرگرمیاں تیز کر دی، ایسے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. تیسری صورت کیا ہے؟ مرتد ہو گیا تھا، اس نے یہ سارے کام کرتا رہا، نیگیٹیوٹی، اسلام کی مخالف یہ سرگرمیاں کرتا رہا، اینڈ پہ مرتے ہوئے بالکل جب وہ سانس کہتے ہیں کہ جی حلق تک آ جائے تو اس وقت تو توبہ قبول نہیں ہوتی. اس وقت توبہ کی اس کی بھی قبول نہیں ہوگی، ان تینوں کی. تو باقی قبول کی یہ شرطیں جی کہ جی سچی توبہ کریں اور اپنے اعمال اور افعال درست کریں، اپنی اصلاح کر لیں. جو کچھ بھی لوگوں میں باطل قائد ماضی میں یہ پھیلا چکے ہیں اگر اس کی یہ تردید کریں، اپنی تقریر کے ذریعے گمراہی پھیلائی ہے تو جس طرح کی ہے بری محفل میں کی ہے تو وہاں جا کر ان چیزوں سے برات کا اظہار کریں، بیزاری کا اظہار کریں، غلطی کا اعتراف کریں. کسی ریٹر صورت میں ہے تو اس میں آپ تلافی اس میں کریں، غلطی کا اعتراف کریں، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. باقی جن کی نہیں ہو سکتی یہ ساری یہاں پہ صورتیں آپ لکھی ہوئی ہیں، ایسے سمپل آیات ہیں اور ان کی تفسیر بھی سمپل ہے. جی اس کو کریں. ان الذین کفروا، یہ تو ہو گیا. الذین کفروا موصول صلہ مل کے اسم انا. وماتوا، واو کو کیا بنائیں گی؟ یہ واو عطف ہو جائے گا. کفرو آگے جو فائل آ رہا ہے، فیل آ رہا ہے، کفرو پہ وہ جو فیل پیچھے عطف ہو گزرا جائے ہے، گا. جو پیچھے گزرا ہے کافرو اس پر ماتو عطف ہو گیا. شاباش. آگے جی وہم کفار، یہ واو حالیہ ہو جائے گا اس یہ حال واو میں حالیہ کہ ہو جائے گی. جی ہم کفارون، ہم مبتدا، کفارون خبر. اس حال یہ میں جملہ کہ وہ حال بنا لیں، کسی کافر. کو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو آپ سمپل اور کے ساتھ ترجمہ کر دیں. یہاں تک ترجمہ کریں. جی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک یا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے جی اس حال میں کہ وہ کافر تھے. شاباش. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے. یہ دونوں طرح سے ترجمہ ٹھیک ہے. یہ جی یہ ابھی اسم چل رہا ہے، اگر آپ غور کریں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ٹھیک ہے، یہ سارا اسم چل رہا ہے. اب اس کی خبر آ رہی ہے، خبر پہ فا ہے، یہ فا جزائیہ، یہ فا رابطہ ہے. یاد رکھیں وہ اسم موصول جس بعض دفعہ اسم موصول میں شرط کا مفہوم ہوتا ہے، بعض اس کو اسم موصول بھی بیان کریں گے. شاید آپ نے اس طرح سنا ہو کہ وہ مبتدا جو کہ اسم موصول پر مشتمل ہوتا ہے بعض اوقات اس میں شرط کا مفہوم ہوتا ہے، تو پھر اس کا آگے جو جواب شرط آئے گا، یعنی کہ جو بھی اس کا جواب آ رہا ہے، جیسے یہاں انا کا جواب آ رہا ہے تو اس پہ وہ ایک طرح کا جواب شرط ہو گیا، تو اس پہ فا کا داخلہ اب یہاں پر ہے. یہ فا جزائیہ یا رابطہ ہے. لن یقبلا، بتائیں. لن پھر سے حرف نفی ہے، یہ منصوب کرے گا آگے مضارع کو، اس لیے یقبلا منصوب ہوا ہے. اور قاف بالام اس کا مادہ ہے باب سین سے، اور یہ مجہول ہے. مجہول. شاباش. اور اس کا نائب الفاعل آگے مرفوع اسم مل الارضی ہے، مضاف مضاف الیہ ہو کے. اور من بالکل ٹھیک. احدہم، یہ من حرف جر ہے، احدہم مرکب اضافی ہو کے یہ متعلق ہو جائے گا مجرور ہونے کے بعد. شاباش. تو یقبلو فعل، یقبلا فعل اپنے نائب الفاعل اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ یہ خبر ان نہ ہو جائے. یہ خبر ان ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. اور فا کا داخلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اسم موصول جس میں شرط پائی جاتی ہے آگے جو اس کا اس کے جواب میں، یعنی کہ جواب الشرط اس کے آگے آ سکتی ہے. تو یہ وہ اسم موصول انا کا اسم بن رہا ہے، تو اب انا کی خبر پہ یہاں پہ وہ جواب شرط ہے ایک طرح کی. ٹھیک ہے. اور آپ جو بھی یاد کر سکتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ مبتدا میں شرط پائی جاتی ہے تو اس کی جو خبر ہوتی ہے، اب یوں یاد کر لیں، مبتدا میں بعض اوقات شرط پائی جاتی ہے اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ جواب شرط ہوتی ہے اس کے لیے. اور وہی مبتدا جب انا آ گیا تو اب انا کا اسم بن گیا، اور وہی خبر اب انا کی خبر، تو جب وہ انا کی خبر بنی جواب شرط جو تھی وہ انا کی خبر بن گئی. جس کو جس طرح سمجھ آتی ہے اب اس طرح یاد کر. بیسیکلی شرط کا مفہوم اسم موصول میں ہو سکتا ہے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. مل الارضی، یہ زمین بھر. اچھا اس کا بھی ایک رول ہے، یہ جو ہے نا زمین بھر کے، تو اب کیا زمین بھر کے، تو ذہبن کو تمییز بھی بنا سکتے ہیں اگر سمجھ آپ کو آتی ہے اس طرح سے ترجمہ کرنے کے لیے تو چھوڑ دیں، نہیں قبول کیا جائے گا. آپ اس کو مفعول بھی آپ اس کو بنا دیں. آپ نے ترجمہ کیا؟
नहीं उस्ताद आप भी करें। कीजिए। जी तो फलन युकबला, तो नहीं, शुरू से करें, उनमें शुरू से, से करें। बेशक अच्छा जिन लोगों जी ने, वो लोग जिन्होंने, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और वो मर गए इस हाल में कि वो काफिर थे, तो उनमें से किसी एक से जमीन भर सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा, हरगिज हरगिज कबूल नहीं कबूल नहीं किया जाएगा। किया। शाबाश, नन, वेरी गुड साहबा, सोना। आगे वाओ वाला वाला विफ्तदा भी। वाव आतिफा बनाए और लव शर्त है। इफ्तदा यफ्तदी, ये ये बाब इफ्तियाल से है। फा ठीक, दाल या इसका मादा है, हुआ इसका फाइल है, बिही मुताल्लिक के फेल हो जाएगा। और ये यहाँ जुमला लव की जवाब शर्त यहाँ पर माजूफ है, तो बस जी यहाँ पे सिर्फ ये शर्त वाला जुमला फेलिया आ रहा है। इफ्तदा भी फेल फाइल मुतल्लिक से मिलकर क्या बनाना चाहेंगे इसको? ये भी अर्थ हो जाएगा खबरो जी, इन्ना अतफ पर। भी कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं बहुत जगह देख रही थी इसको जुमला मोतरजा भी बनाया गया, चाहे पीछे अतफ कर दें चाहे मोतरजा अच्छा कर दें। इसका जुमला तर्जुमा बस मोतरजा। आप देखें। अगरचे, अगरचे क्या करेंगे, कैसे करेंगी? या ख्वा मैंने क्या किया दिया जाए? और अगर वो इसको फिदिये में दे, मतलब ठीक है शाबाश। ख्वा वो इसको फिदिये में दे या अगरचे वो इसे फिदिये में दे, इस तरह से अगरचे मैम कैसे लव का अगरचे भी कर सकते क्या? जी कर सकते। जी अगरचे वो इसको फिदिये में भी दे। ठीक है, आप ख्वा के साथ चेक कर लें। ठीक, बहुत से लोगों ने ख्वा के साथ किया हुआ है, वैसे अगरचे के साथ बिल्कुल इसका हाँ कर सकते हैं जी। आगे चलें। जी उलाइका, उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन, उलाइका मुब्तदा है, लहुम अज़ाबुन अलीमुन ये एक जुमला बन जाएगा और ये खबर हो जाएगा उलाइका मुब्तदा की। लहुम शिबु जुमला खबर मुक़द्दम, अज़ाबुन अलीमुन मौसूफ सिफ्त होके ये मुब्तदा मुअख्खर। तो अच्छा आप इस तरह यही कर रही लोग हैं हैं। आप। ठीक है, आप इनके लहुम को अच्छा आपने इस तरह से ये किया है, मैंने अलग आपने जुमला खबर को बनाया। अलग से जुमला कर लिया। ठीक है जी, वो भी कर सकते हैं वैसे। उसको अजाबुन नरीमुन के मुतालिक भी लहम को कर सकते हैं। शाबाश, ठीक है जी, फिर करें। लहुम को ठीक ठीक। यह बिल्कुल ठीक। उलाइका यही लोग हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। हाँ, यूं तर्जुमा बहुत मजे का बैठता है। अगर आप उलाइका मुब्तदा और उसकी खबर को जुमला इसमिया पूरा बना लेना तो फिर तर्जुमा बड़े मजे से बैठता है। ये लोग, ठीक है, शुरू में ये लोग, इनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। आप ये भी कह सकती हैं ये लोग इन ही के लिए एक दर्दनाक अजाब है, क्योंकि इसमें खबर मुकद्दम हो रही है। और ये भी कर सकती हैं इन ही लोगों के लिए एक दर्दनाक अजाब है। अगर आप इसको एक ही कर लेती है ना, आप इसको खबर जो है आप उसको जुमला ना बनाए, आप अजाबु नरीमुन कर दें और लहम को इसके मुतल्लिक कर दें, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इन्हीं लोगों के लिए एक दर्दनाक अजाब है। लेकिन जिस तरह आपने किया बहुत अच्छा है, यह तर्जुमा बड़े आराम से बैठता है। आगे व मालहुम, मुझे आवाज नहीं आ रही बुशा जी। जी उस्ताजा जी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। व मालहुम, आवाज आ रही है। जी अब जी आ रही। वमा लहुम मिन नासिरीन। वाओ जी उसका जी थोड़ा नेटवर्क वीक हो रहा जी है। वाओ ठीक है। अत्फ हो गया, मा नफी का है। लहुम खबर मुकद्दम बनाया है मैंने, और मिन जायदा है। नासिरीन ये इस्मुल फाइल होके मुब्तदा मुअख्खर हो जा रहा है। आपने मिन को क्या बनाया? जायदा मिन ज्यादा। शाबाश शाबाश, वाओ आतिफा। माँ को अगर हम ये वो वाला नाफिया लेते हैं, हम इसको भी जुमला इसमिया पर आया, इसका एक इसम होगा एक खबर। बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया एक ग्रुप, वो इसका इसम और खबर नहीं लेते, वो इसका मुब्तदा और खबर ही रहने देते हैं। लेकिन जो कुरान का उस्लूब ज्यादा यही है कि माँ इसको हिजाजिया कहते हैं जब ये जुमला इसमिया पर आता है कि इसका इसम और एक खबर होगी। अब ये लाहुम इसकी खबर लहुम मुकद्दम और असल खबर में ये नासी रूना है। और लेकिन ये मिन जायदा आ गया, मिन हरफ जर है। ये चाहे जायदा है मजरूर तो कर देगा, लेकिन महल्लन ये महल्लन देखने में लफ्जन मजरूर होगा, महल्लन ये उसका इसम कह लें मंसूब। या जो इसे मुब्तदा कहते हैं मुब्तदा। शाबाश, माँ इसके साथ मिलकर जुमला इसमिया, अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया। तर्जुमा करें। और उनके लिए मदद करने वाले, आई मीन वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनके लिए मदद करने वाले नहीं होंगे। ठीक है, और उनके लिए कोई मदद करने वाले, आप यूं भी कर सकती हैं कि और उनके लिए
کوئی अच्छा مدد ये کرنے नकरा والے نہیں. یہ جو مین زائدہ ہے نا یہ بھی تھوڑا اس میں ایک تاکیدی فیکٹر ہے. اچھا پھر یہ جو ماں ہوتا ہے نا یہ ماں جو مشابہ باللیسا ہے جسے ماں حجازیہ بھی کہتے ہیں جو جملہ اسمیہ پر آتا ہے اس پر بھی با کا جی داخلہ بھی ہو سکتا ہے مزید زور کے لیے. تو اس میں تھوڑا سا یہ جو مشابہ باللیسا لیسا میں بھی خاص طور پہ یہ ماں مشابہ باللیسا لا مشابہ باللیسا ان میں ایک تھوڑا سا ایک زور ہے. پھر اس خاص طور پہ جب ان کے ساتھ با آتا ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے وہ تاکید. اچھا جی ان کے لیے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے. جی جی جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک. ایک دفعہ میں اس کا ترجمہ کر دیتی ہوں یہ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے یا بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے یا اور وہ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے تو فا جزائیہ فا رابطہ کا عام طور پہ تو کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں. تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا یا زمین کے برابر سونا ٹھیک ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے اگرچہ یا خواہ وہ اسے فدیے میں دیں. یہی لوگ ہیں یا یہ لوگ مبتدا الگ کر دیں خبر الگ کر دیں جملہ جو اسمی ہے یہ لوگ ان کے لیے ہی ایک دردناک عذاب ہے یا بہت دردناک عذاب ہے. ضروری نہیں ہے نکرہ نکرہ آپ کو پتہ ہے کہ تعظیم کے لیے بھی تکثیر کے لیے بھی کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بہت بڑا بہت زیادہ دردناک عذاب ہے یا ایک دردناک عذاب ہے یہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں حسر پیدا ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو لائقہ کی جو آپ خبر ہم نے جملہ اسمیہ بنائی ہے تو اس میں بھی خبر مقدم ہو رہی ہے. یہ لوگ ان ہی کے لیے یا ان کے لیے ہی ایک دردناک عذاب ہے یا بہت بڑا دردناک عذاب ہے. یا اگر آپ اولئکہ مبتدا اور آگے عذاب الرجیم کو خبر بنا دیں اور لہم کو اس کو متعلق کر دیں تو آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں یہی لوگ یا انہی لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں. یہ تھوڑا اس میں ایک طرح کا زور ہے یہ جو تاکید آ گئی ہے یہ جو من زائدہ کی وجہ سے. چلے جی ہمیں ریکارڈنگ میں اس کو کر رہی ہوں اسٹاپ.